Welcome. The topic we are discussing is coronary artery disease. This coronary artery disease is also referred as ischemic heart disease. So to understand the coronary artery disease, first let's understand the anatomy of the coronary artery. Now, when it comes to the anatomy of the coronary artery is supplying the muscles of the heart. और ये जो coronary artery होती है originates from the root of the aorta, means from the beginning of the aorta. If we take a cross section of the aorta, say for example from this particular point, if we take a cross section like this, agar aorta is like a pipe, if I take a cross section and I show you like this aorta will be visible like this. Here is the cross section of the aorta. अगर हम इस एओटा की चार सरफेस को आइडेंटिफाई करते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, this is the right side of the aorta and this is the left side of the aorta. Now what is going to happen is, ये जो aorta होता है, at the root of aorta उसके अंदर छोटे छोटे पाउच बने होते हैं. On the anterior side of the aorta we have the anterior aortic sinus, and in the posterior side we have the posterior right and posterior left aortic sinus. From the anterior aortic sinus, the artery which is originating from the anterior aortic sinus, it is the right coronary artery. And from the left posterior aortic sinus, the artery which is originating is the left main coronary artery. ये जो left main coronary artery होती है, it is bifurcating into two. One, it is the left anterior descending artery, and another which is going towards the back side, that is the left circumflex artery. So basically we have these four main arteries. One which is originating from the anterior aortic sinus, that is the right coronary. From the left posterior we have the LMCA, that LMCA is bifurcating into two, the LAD and LCX. If we see the same thing here you can see the aorta. This is the right side, this is the left side. On the right side you can see an artery is coming out, and this particular one, this is the right coronary artery, RCA. Then on the left side, a big artery which you can see on the left posterior side, this is the LMCA. This LMCA is bifurcating into two, one which is coming anteriorly like this is the LAD, left anterior descending, and the one which is going and going towards the back side on the back surface of the heart, that is the left circumflex artery. So these are the various arteries which are there in the heart. This is a simple anatomy. You will discuss much more about these various branches in the anatomy section, but as of now, what is important for us to understand this entire chapter, this is the basic information to be understood. Now let's understand one basic more terminology part of this chapter. See, now what is happening is, here is the muscles of the heart and this is the coronary artery, means the blood supply to the heart. Any coronary artery. Right now you and me, we are having a very good blood supply to our cardiac muscles, means the myocardium. So the myocardium means the cardiomyocytes, they are very healthy and we are not having any chest pain. But say for example, if a patient is having atherosclerosis in the coronary artery, as you can see in the second image, if there is a atherosclerosis, then the blood supply which is going to happen, it is going to be relatively less. And if there is a relatively less blood supply, there is a chance of ischemia. There is a chance of ischemia, and because of ischemia, the cardiomyocytes will look like this and the patient will develop chest pain. It may happen in some patient that atherosclerosis become very aggressive and the blood supply is almost not there. If the blood supply is almost not there, then this ischemia will turn into infarction, means there is going to be necrosis of the cardiomyocytes. And if there is a necrosis of the cardiomyocytes, the content of the cardiomyocyte, as you can see here in the green color, it will come out. These are the cardiac markers or the cardiac enzymes which will come out and they will enter in the blood. They will enter in the blood, these cardiac enzymes. So what we have discussed so far, if you see the first image was completely normal. There is no problem. There is no chest pain. There is no chest pain because there is no ischemia. But if you see the second one, what is happening there? There is the problem that is happening is decrease in the blood supply. So the patient is having ischemia. And if you see the third one, because there is a significant decrease in the blood supply, so the patient is having infarction. The basic idea is to make you understand the difference between the ischemia and infarction. Ischemia में blood supply कम होती है, infarction में तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, तो necrosis हो गया. Chest pain तो दोनों में होगा. Chest pain तो ischemia और infarction दोनों वाले में होगा. तो कैसे पता लगाएंगे कि मान लीजिए एक पेशेंट आया, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे पता लगाना है कि इस्चेमिया की वजह से हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा कार्डियक एंजाइम्स का ब्लड में लेवल क्या है. आप देखो कि इस्चेमिया वाला जो इमेज हमने बनाया उसके अंदर जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं वो रप्चर नहीं हुए हैं,
नहीं हुए हैं, तो वो जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल है वो कार्डियोमायोसाइट के अंदर ही है, मतलब कि कार्डियक एंजाइम्स ब्लड में नहीं आए तो कार्डियक एंजाइम्स नहीं बढ़ेंगे. सो कार्डियक एंजाइम्स, वन ऑफ द कार्डियक एंजाइम इज ट्रोपोनिन. So in the ischemia, whenever there is a ischemia, the cardiac enzyme will not increase. Cardiac enzyme not increased. Whereas in the infarction, the cardiac enzyme is going to be increased. So this is how we can identify whether the infarction is happening or ischemia is happening. अब हमने ये पता लगाना सीख लिया कि इश्चेमिया हुआ, इन्फाक्शन हुआ. इश्चेमिया इन्फाक्शन मीन्स देयर इज अ इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन. ये जो इन्फाक्शन होता है ये दो तरीके का होता है बेस्ड ऑन द ईसीजी. इन्फाक्शन इज ऑफ टू टाइप बेस्ड ऑन द ईसीजी. अगर आपको ईसीजी के अंदर एसटी एलिवेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सो मायोकार्डियल इन्फाक्शन मीन्स द एमआई इज ऑफ टू टाइप बेस्ड ऑन द ईसीजी फाइंडिंग, whether there is ST elevation is there in the ECG or not there. If there is no ST elevation in the ECG, that is called as non-ST elevated myocardial infarction, and if the ST elevation is there, that is called as ST elevated myocardial infarction. So this is the various terminologies that we should be very familiar with. I am again explaining all these terminologies because we are going to use these terms again and again. So let's see. इन द फर्स्ट इमेज आप देखिए कि ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई, द पेशेंट इज कंप्लीटली नॉर्मल, देयर इज नो चेस्ट पेन. इफ यू सी द सेकंड वन, what you will find is there is decrease in the blood supply, and because of the decrease in the blood supply the patient is having the ischemia and the patient is having chest pain because of that. If you see the third image, there is a significant decrease in the blood supply. अब ischemia जो है infarction में convert हो गया, infarction में convert हुआ तो cardiomyocytes rupture हो गए और ये green color का enzyme बाहर आ गया, and that is going to increase in the blood, that is the troponins. So when it comes to the infarction and ischemia, chest pain दोनों में होता है, कैसे differentiate करते हैं? By the troponins. Infarction, myocardial infarction is of two type. The ECG के अंदर ST elevation है या नहीं है? नहीं है तो anastemi, और अगर है तो STEMI. Once we are familiar with these terms, now let's see the risk factors for coronary artery disease, or I would say the risk factor for atherosclerosis, because coronary artery disease will develop because of atherosclerosis. So what are the risk factors which are going to be there? The risk factors can be divided into two categories: non-modifiable and modifiable. Non-modifiable and modifiable. Non-modifiable मतलब कि जिनको हम बदल नहीं सकते. जैसे कि हमारी लाइफ में भी कभी भी कोई भी डिफिकल्टी आती ना, तो उस डिफिकल्टी के चारों तरफ जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. या तो हम उनको चेंज कर सकते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. इन दैट एग्जाम what we cannot control, that what will be the examination date, how the hard the paper will be, where will be over center, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं है. हमारे हाथ में क्या है? अच्छे से पढ़ाई करना, हमारे नॉलेज को अच्छा करना, मोर MCQ प्रैक्टिस वी हैव टू डू. दीज आर द मॉडिफाइबल थिंग्स. सो वेन एवर इट कम्स any aspect of the life, what is more important for us is the modifiable factors. नॉन मॉडिफाइबल को तो बहुत डिस्कस करके कोई पॉइंट नहीं है. जैसे कि यहाँ पे व्हाट आर द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज सच एज एज. द मोर द एज, द मोर द चांस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. मेल्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांस ज्यादा है. इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री, देयर इज मोर चांस. अगर किसी को घर में पहले ही मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो रखा है, अगर घर में किसी को पहले अटैक आ रखा है, हार्ट अटैक आ रखा है, there is a chance that the other family members may also get that. These are the non-modifiable risk factors. When it comes to modifiable risk factors, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, we can control the sugar, smoking, hypertension. These are the modifiable risk factors. Can you tell me one amino acid जिसके बढ़ने से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है? Yes, there is amino acid that is homocysteine. So if someone is having hyperhomocysteinemia, if there is hyperhomocysteinemia, there is more chance of coronary artery disease, hyperhomocysteinemia. Then, can you tell me a lipoprotein? If that is more, there is a chance of more atherosclerosis. That is lipoprotein A. Lipoprotein A. Can you tell me an infection that leads to atherosclerosis? Yes, recurrent chlamydia infection. Recurrent chlamydia infection. Then, dyslipidemia. डिस्लिपिडीमिया. आपने लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देखी होगी. जब भी आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स में से कोई भी लिपिड प्रोफाइल कराता है, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे इमेज भेज देता है, एंड दे आस्क दैट व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन. देयर आर मेनी पैरामीटर्स आर देयर, LDL, VLDL, काइलोमाइक्रोन, LDL, VLDL, LDL HDL रेशियो.
So if I ask you that, what is the single most important parameter to assess for dyslipidemia, जो single most parameter है हमारे लिए वो है LDL HDL रेशियो. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ये देखना. Then when it comes to dyslipidemia, one of the dyslipidemia is increase in the cholesterol. If there is increase in the cholesterol, there is more chance of atherosclerosis. And there is a disease where we can have familial hypercholesterolemia. मतलब कि फैमिली में सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है. That is called as familial hypercholesterolemia. Familial hypercholesterolemia. This familial hypercholesterolemia, this is also called as type 2 lipid disorder. टाइप 2 लिपिड डिसऑर्डर. जब हमने बायोकेमिस्ट्री में लिपिड डिसऑर्डर की बात की थी उसमें मैंने टाइप 2 लिपिड डिसऑर्डर में आपको पढ़ाया था फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया. घर में सारे फैमिली मेंबर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है. ऐसा इसलिए हो जाता है, द रीजन, द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट इज देयर इज अ डिफेक्ट इन द एलडीएल रिसेप्टर्स. देयर इज अ डिफेक्ट इन एलडीएल रिसेप्टर. एलडीएल रिसेप्टर खराब हो जाते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल अच्छे से काम यूटिलाइज नहीं हो पाता और वो कोलेस्ट्रॉल अलग अलग जगह पे जा जाके इकट्ठा हो जाता है. जैसे कि आप देखो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आईलिड में इकट्ठा हो गया जिसको हम बोलते हैं ज़ेंथिलेस्मा. दिस पेशेंट विल हैव ज़ेंथिलेस्मा. दिस कोलेस्ट्रॉल कैन एक्यूमुलेट समवेयर हियर इन द कॉर्निया. दिस इज कॉल्ड एज आर्कस सेनिलिस. The cholesterol can accumulate in the tendons, something like this, making a nodular structure called as tendon xanthomas. So you can see these several findings which are there in the hypercholesterolemia, type 2 hypercholesterolemia. Now, what we were discussing was the various risk factors of the coronary artery disease. So we have the non-modifiable risk factors and the modifiable risk factor, and the modifiable are the important ones to be remembered. Which amino acid, which lipoprotein, which infection. These are the few questions which has been already asked when it comes to the risk factor of atherosclerosis. When it comes to alcohol, is it a risk factor of atherosclerosis? No, it is not a risk factor. Alcohol is not a risk factor for atherosclerosis. Alcohol is not a risk factor. If taken in a limited quantity, alcohol is not a risk factor for atherosclerosis. Not a risk factor. Now, anytime when a patient of chest pain is coming to us, a lot of patients will come in the emergency if you have been to there. The first and the foremost thing is हमें ये पता करना होता है कि इसको चेस्ट पेन जो हो रहा है कार्डियक है या नॉन कार्डियक है. So we are going to ask certain set of question to the patient and that is called as the WHO ROSE questionnaire. जब भी हमारे पास में चेस्ट पेन का पेशेंट आएगा, we are going to ask certain set of question and that is called as the WHO ROSE questionnaire. And based on that, we will try to find that whether it is a cardiac chest pain or a non-cardiac chest pain. अगर non-cardiac है तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन cardiac है, then we have to do some emergency management. What are the various things that we are going to ask a patient of chest pain? सबसे पहले हम उसको ये पूछेंगे कि आपको ये जो चेस्ट पेन हो रहा है ये किस तरीके का हो रहा है. ऐसा लग रहा है आपको कि कहीं सुइयां चुभ रही है, और यू आर फीलिंग एज इफ समवन हैज पुट 100 किलोग्राम ऑन योर चेस्ट, यू आर फीलिंग स्क्वीज्ड, समथिंग लाइक दैट. द पेशेंट विल से यस, I am feeling that as if someone has put 100 kilogram on my chest. It is going to be a squeezing type of chest pain. The squeezing in character. It is going to occur retrosternal. और पेशेंट ये भी बोलेगा कि जब वो चेस्ट पेन हुआ था, it started from here and it is radiating towards the left shoulder, left inner aspect of the arm. It is radiating towards the left side of the neck. So the radiation towards the left shoulder, left inner aspect of the upper limb, left side of the neck, left side of the jaw, it is radiating towards the left side. It is associated with sweating, shortness of breath. So these are first few of the questions that you are going to ask. The second question you will ask is कि ये जब chest pain हुआ उस टाइम पे आप कर क्या रहे थे? You were sitting comfortably or you were walking very fast, you were doing some exertion, सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम chest pain हुआ या घर पे बैठे बैठे chest pain हुआ? So you will ask what is the trigger? The trigger was exertion or not? The third thing you will ask is कि ये chest pain वापस ठीक कैसे हुआ, कम कैसे हुआ, अगर हो गया है तो. The patient will say that the chest pain has decreased by taking rest. So you will ask mainly these three parameters. अगर वो तीनों पैरामीटर जो हमने लिखा है इस तरीके से आंसर करता है, all the three are there, then this is typical anginal pain. This is the typical anginal pain. If 2 out of 3 is positive,
This is atypical anginal pain. And if only one is positive out of the three, it is non-anginal pain. ये जो चेस्ट पेन वाला पेशेंट होता है, जब कार्डियक चेस्ट पेन होता है, he is going to, if you ask that where the pain is happening, he is going to put the hand on the chest and he is going to clench the chest like this. अगर वो पेशेंट अपने चेस्ट पे इस तरीके से अपनी फिस्ट को रख देता है, if the patient puts the fist like this is called as the Levine sign, referred as Levine sign. So these are some of the things that you are going to ask to your patient. What are the various investigations we are going to do in a patient of coronary artery disease? The first and the foremost investigation is ECG. Every patient of chest pain is subjected to ECG within 10 minutes of arrival. पेशेंट जैसे ही आपके हॉस्पिटल में आया है, अगर उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी ईसीजी हो जानी चाहिए. There are 3 layers in the heart. The outermost layer, the pericardium, then we have the muscular layer, myocardium, then we have the endocardium. When it comes to coronary artery disease, basically ischemia होना है, और ischemia किसका होना है? मायोकार्डियम का. तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जो हमारा मेन कंसर्न है वो है मायोकार्डियम के इश्केमिया और इन्फेक्शन से. तो जब अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो कार्डियक मसल की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी. तो वो ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारे को? टोटल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ पेशेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैन हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईसीजी फाइंडिंग्स. सी हियर हाउ. Here is the representation of the left ventricle, and you can see that these are the 3 layers of the heart: the pericardium, the myocardium, endocardium. What is happening here is, let's say for example this first patient, he is having some amount of atherosclerosis here, and because of that the blood supply which was happening, it was relatively less. जैसे ही blood supply कम होगा उसकी वजह से पेशेंट को आगे इश्केमिया होने लगेगा. अगर मैं आपसे पूछूं कि मायोकार्डियम के अंदर विच इज द एरिया विच इज ऑलरेडी हैविंग अ वेरी लेस ब्लड सप्लाई एंड विच इज वेरी वनरेबल फॉर इश्केमिया, तो जो सबसे वनरेबल एरिया होता है इश्केमिया के लिए वो होता है ये वाला एरिया, मीन्स जस्ट बिलो द एंडोकार्डियम. ये वाला जो एरिया होता है इसमें ब्लड सप्लाई वैसे ही बहुत कम होती है, और अगर थोड़ा भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो यहाँ पे इश्केमिया होने के चांस है. दिस पर्टिकुलर एरिया इज रेफर्ड एज द सब एंडोकार्डियल एरिया. सब एंडोकार्डियल. So the most vulnerable area for ischemia, it is the subendocardial area. So how the subendocardial ischemia will look like on the ECG? This is the normal ECG, PQRST. ये वाला जो segment है between the S wave and the T wave, this is the ST segment. Here is the S wave and this is the T wave. Between the S and T, this is the pink color line is the ST segment. अगर subendocardial ischemia हुआ है तो ये जो ST segment है, it is going to look like this. Here is the S wave. It will be looking like this. So what is happening here is कि ST segment जो है वो नीचे की तरफ चला गया. Means there is ST depression is happening. So if there is a subendocardial ischemia, ST depression can be there. It is not very specific. It is sensitive. मतलब ST depression आपको और दूसरी कंडीशन में भी दिख सकता है, लेकिन अगर सब एंडोकार्डियल इश्केमिया है तो ये ST डिप्रेशन आएगा. लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड चीज. अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक था, वो रप्चर हो गया और ऑलमोस्ट 100% ब्लॉक हो गया. इफ देयर इज ऑलमोस्ट 100% ब्लॉक इन द कोरोनरी आर्टरी, 100% स्टेनोसिस हो गया, 100% ब्लॉक हो गया, मीन्स देयर इज नो ब्लड सप्लाई इज गोइंग फॉरवर्ड. अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो इस पूरे एरिया में, इन दिस एंटायर एरिया, देयर इज गोइंग टू बी इश्केमिया एंड इन्फेक्शन विल हैपन. अगर पूरे एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज रेफर्ड एज द ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन. दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन. सो इफ देयर इज 100% ब्लॉक, देयर इज गोइंग टू बी ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन. एंड हाउ द ECG विल लुक लाइक? दिस इज द नॉर्मल ECG. इन द ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन, द ECG विल लुक लाइक दिस. दिस इज PQR and now the ECG will be like this. So what you have observed here is कि ये जो ST segment था ये ऊपर की तरफ चला गया. Means the patient is having ST elevation. और ये ST elevation जो है ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है. Means this ST elevation is convex. This convex ST elevation is also called as Pardee sign.
So this is the second ECG change that you might get in coronary artery disease. तो coronary artery disease के कुछ पेशेंट में तो आपको ST डिप्रेशन दिखेगा और कुछ पेशेंट्स के अंदर आपको ST एलिवेशन देखने को मिलेगा. और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर ECG के अंदर this particular is the T wave. What happens is there will be some patients in whom the ECG will look like this. Normally the T wave is a positive wave, but here you can see this is inverted T wave. Inverted T मतलब कि रिवर्स T, नीचे की तरफ चला गया. T आना तो ऊपर चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नीचे की तरफ चला गया. तो कुछ पेशेंट में इस तरीके के चेंज देखने को मिलेगा. In some patients the ECG will look like this. The Q wave will become very big. It's going to become deep, something like this. So if the Q wave becomes big, deep, it is represented as a capital Q or a large Q. So in some patients we are going to have a large Q wave. Large Q wave. There will be some patients in whom what is going to happen is normally the T wave is a positive wave. कुछ पेशेंट ऐसे होंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले जिसके अंदर टी वेव जो होगा कुछ इस तरीके का दिखेगा. What you can see is कि यहाँ पे टी वेव ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है. This is called as the biphasic T wave. There will be some patients of coronary artery disease who will have the biphasic T waves, particularly in V1 and V2. V1 and V2 leads. अगर ऐसा होता है, this is also called as Wellen syndrome. Wellen syndrome. So we have discussed total 5 changes. There are total 5 changes that I want you to remember in coronary artery disease. मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बहुत क्लियर कट रिपीट करूंगा, आप उसको बहुत ध्यान से सुनना. पहला, किसी भी पेशेंट में ये सारे पांचों के पांचों चेंज नहीं देखने को मिलेंगे. इनमें से कोई एक या दो चेंज देखने को मिलेगा. दीज चेंजेस आर नॉट वेरी स्पेसिफिक. मतलब कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में एसटी एलिवेशन आ रहा है, डजंट मीन कि उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ही है. दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक. दे आर सेंसिटिव बट नॉट स्पेसिफिक. व्हाट आर द 5 चेंजेस? एसटी डिप्रेशन, एसटी एलिवेशन, इन्वर्टेड टी, लार्ज क्यू एंड बाइफेसिक टी. इनमें से कोई एक चेंज देखने को मिलेगा. वो जो चेंज होगा वो सारी लीड्स में देखने को नहीं मिलेगा. द चेंज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज अकर्स इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लीड. अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी लीड में देखने को मिलेगा, बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, सारी लीड्स में चेंज देखने को नहीं मिलेगा. नाउ इफ यू सी द चेंजेस हियर इन द रियल ईसीजीज, यहां पे देखिए अब आप, the ones leads which I have highlighted, just focus on those leads. अगर आप सबसे पहले ये वाली लीड देखिए, इसके अंदर V2, V3, V4, V5, V6 देखेंगे, आप देखो ये जो ST सेगमेंट है वो नीचे की तरफ चला गया. होना तो यहाँ चाहिए था जहां पे मैं डॉट बना रहा हूं, लेकिन वो नीचे चला गया. उससे मीन्स द पेशेंट इज हैविंग ST डिप्रेशन एंड द ST डिप्रेशन इज नॉट देयर इन ऑल द लीड्स, सम पर्टिकुलर लीड्स के अंदर दिख रहा है. इफ यू सी द नेक्स्ट वन, जस्ट लुक एट द लीड्स विच आई एम हाईलाइटिंग. लुक एट द लीड सेकेंड, थर्ड एंड AVF. आप देखो इसके अंदर ST सेगमेंट ऊपर की तरफ चला गया. The ST segment has went up. Here the finding that we are able to see is the ST elevation. Here the finding that you can see even particularly in V1, V2, V3, V4, V5, आप देखिए इसके अंदर जो T wave है that is going on the reverse direction, inverted T wave. Then here what you can see is, if you see the second, third AVF, particularly in the third and AVF, we just focus on third and AVF, you can see a large Q wave. बहुत बड़ा deep Q wave आ रहा है. So large Q wave. The next one, V1, V2, V3, अगर आप इसमें देखो, नॉर्मली तो T wave पॉजिटिव वेव होता है, बट यहाँ पे देखो ऊपर जाके नीचे आ रहा है. दिस इज द बाइफेसिक T wave. So these are the various changes that can be there in a patient of coronary artery disease. तो अब हमारे को ECG फाइंडिंग से क्या याद रखना है? So first let's revise. There are 5 types of changes that can be there. What are the 5 changes that can be there? ST elevation, ST depression, inverted T, large Q and biphasic T. इनमें से कोई सा भी आ सकता है. कौन सी लीड्स में आएगा? They are not going to be there in all the leads. Some particular group of lead में आएगा. कौन सी leads में आएगा? What are these some particular group of leads? To understand that, we need to understand the anatomy part. See here. Here is the the right atria, the left atria, the left ventricle and the right ventricle. The 4 chambers of the heart. सबसे ज्यादा जो थिक मसल्स होती है वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की. तो अगर कभी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है
तो मतलब कि ब्लड सप्लाई कम होगी। सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स को, एंड whenever there is a decrease in the blood supply, the most likely chance the ischemia is going to happen in the muscles of the left ventricle, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई इनको चाहिए थी, मसल सबसे ज्यादा थिक यहाँ पे था। Now if you see the blood supply from the root of aorta, we have the right coronary artery, then we have the left main coronary artery. This left main coronary artery, we know that it bifurcates into two. The bifurcation is like this. One is the left anterior descending artery which is supplying like this, and the other is the left circumflex artery जो इस तरीके से यहाँ से ऐसे घूम के पीछे की तरफ जा रही है. So this is the LCX and this is the left anterior descending artery, LAD. जब हम ECG करते हैं तो आपने देखा होगा ECG में हम अलग अलग लीड्स लगाते हैं, राइट? V1 को यहाँ पे लगाया, V1, V2, V3, V4, V5, V6. ये लीड्स कर क्या रही है? बेसिकली दे आर रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स. V1 यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है, V2 यहाँ से कर रहा है, V3 यहाँ से, V5 यहाँ से, V6 यहाँ से. अगर मैं हार्ट की सर्फेसेस को आपको बताऊं तो देखिए हार्ट की हम सर्फेस को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इफ दिस इज द हार्ट, दिस इज द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट, दिस इज द लेटरल सर्फेस ऑफ द हार्ट, देन वी हैव द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट. इंफीरियर सर्फेस जो कि डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा है. सो हियर इज द हार्ट, this is the anterior surface, this side is the lateral surface, and the heart is resting on the diaphragm, so the inferior surface of the heart. Now if we see the placement of the lead, V1 को कुछ इस जगह पे लगाया गया, that is recording the electrical activity from somewhere here. V2 is recording the electrical activity from here. V3, V4 is from here. V5 and V6 they are recording the electrical activity from here. Then we have some other standard leads also. For example, the first lead that is recording the activity from here. Then we have the AVL that is recording from here. Second, third, and AVF that is recording the electrical activity from here. So if you see that the ECG machine is designed in such a way that is going to record the electrical activities from the different surfaces of the heart. अब अगर मान लीजिए किसी को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है, अगर एलएडी के अंदर ब्लॉक हो जाएगा मतलब कि ये पूरी टेरिटरी में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा. और इस पूरी टेरिटरी से कौन ईसीजी को रिकॉर्ड कर रहा है? V1, V2, V3, V4. तो इस पेशेंट के V1 से लेके V4 में उन पांचों में से जो चेंजेस मैंने आपको बताए थे, एसटी डिप्रेशन, एलिवेशन, उनमें से कोई एक चेंज देखने को मिलेगा अगर एलईडी में ब्लॉक हुआ तो. अगर इसी तरीके से अगर किसी के राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है तो इस एरिया में इस्चेमिया इन्फेक्शन होगा और जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे सेकंड थर्ड एवीएफ में. एंड इन द सेम वे इफ देयर इज अ ब्लॉक इन द एलसीएक्स यू माइट सी द चेंजेस इन दिस एरिया मींस द लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट दैट इज फर्स्ट एवीएल V5 V6. सो नाउ इट इज वेरी इजी दैट इफ अ पेशेंट कम्स टू अस और मान लीजिए मैंने उसकी ईसीजी की, उसको चेस्ट पेन हो रहा था, टिपिकल टाइप का चेस्ट पेन था, लेफ्ट शोल्डर की तरफ रेडिएट हो रहा था, पसीना आ रहा था, ईसीजी किया, ईसीजी के अंदर एसटी एलिवेशन आ रहा था, मैंने देखा कि एसटी एलिवेशन आ रहा है V1 से लेके V4 में. तो इवन विदाउट डूइंग द एंजियोग्राफी आई कैन एंटीसिपेट दैट कि इस पेशेंट के एलएडी के अंदर ब्लॉक हुआ है, इसलिए इसके येलो कलर की जो लीड्स है उसके अंदर, येलो कलर की टेरिटरी में जो लीड्स आ रही है उसके अंदर इसके एसटी एलिवेशन दिख रहा है, राइट? सो this diagram is very important to answer many of the MCQ. For example, what if you are able to see the changes of any of the 5 changes, let's say ST elevation, if you are able to see that in V1 to V4, we will say it is anterior wall MI, it is anterior wall myocardial infarction, anterior wall myocardial infarction. And which is the artery that is going to be involved in that? LAD involved one. In the same way, फर्स्ट AVL V5 V6, आप ये डायग्राम दिमाग में रखेंगे तो सारे आंसर कर देंगे. फर्स्ट AVL V5 V6 में अगर चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज विच साइड ऑफ द हार्ट? लेटरल वॉल. सो दिस इज कॉल्ड एज द लेटरल वॉल MI. लेटरल वॉल MI कब होगा? विच आर्टरी सप्लाइंग इन दैट एरिया? LCX, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स. If a patient is having the ST elevation in first AVL V1 to V6, मतलब कि फर्स्ट AVL V1, V2, V3, V4, V5, V6, यानी कि येलो कलर और ब्लू कलर, इन दोनों टेरिटरी में जितनी भी लीड्स आ रही है सब में चेंजेस आ रहा है. ये तो तब आ सकता है जब LAD और LCX दोनों में ब्लड नहीं आए. और ये कैसे हो सकता है? क्योंकि LAD और LCX दोनों आर्टरी एक कॉमन आर्टरी से ओरिजिनेट करती थी जिसका नाम था LMCA. तो अगर किसी का LMCA ही बंद हो जाएगा तो ना तो LAD में ब्लड आएगा ना LCX में आएगा और इन सारी लीड्स में चेंजेस मिलेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटेंसिव वॉल MI. That is extensive wall MI.
एक्सटेंसिव वॉल मींस एंटीरियर प्लस लेटरल दोनों हो गया, और ये कब हो सकता है, जब LMCA में ब्लॉक होगा. देन सेकंड थर्ड AVF मींस दिस ग्रीन कलर जोन. ग्रीन कलर एरिया में ब्लड नहीं आ रहा, कौन लेके आता है ग्रीन कलर वाले एरिया में, RCA लेके आ रहा था. सो दिस इज कॉल्ड एज द inferior wall MI that occurs because of the block in the RCA. If a patient is having the change in V1 and V2, just V1 and V2, not V3, V4, just V1 and V2, look at the V1 and V2. V1 and V2 कौन से एरिया में आ रहा है, इट इज जस्ट एट द सेप्टम एरिया. सेप्टम में अगर MI होगा तो V1 और V2 में चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो इफ देयर इज अ चेंज इन V1 एंड V2, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टल MI एंड इट इज सप्लाइड बाय द ब्रांच ऑफ LED की कोई ब्रांच सप्लाई कर रही होगी. इन द सेम वे दे आर सेइंग इफ देयर इज a ST elevation in first and AVL, अगर फर्स्ट और AVL में चेंज आ रहा है, दैट इज देयर इन द लेटरल साइड में टोटल 4 लीड्स आती है, फर्स्ट AVL V5 V6. इफ आई गिव यू 2 ऑप्शन एंड यू हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ दैट 1, अगर मैं बोल रहा हूं देयर आर 2 ऑप्शन, हाई लेटरल लो लेटरल, अगर फर्स्ट और AVL में चेंजेस आ रहा है, फर्स्ट और AVL शुड बी कॉल्ड एज व्हाट, इट शुड बी कॉल्ड एज हाई लेटरल. सो फर्स्ट और AVL में अगर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, दिस इज रेफर्ड एज हाई लेटरल वॉल MI. High lateral wall MI, and who is supplying in that area? It is the branch of LCX. So this is how they frame the MCQ. वो क्या करेंगे, आपको एक ECG दे देते हैं या फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोल देते हैं. वो ये बोलते हैं कि पेशेंट की इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लीड में चेंजेस आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ MI एंड व्हाट इज द प्रोबेबल आर्टरी दैट इज बीइंग ब्लॉक. सो इस पूरे टेबल को हमारे को रटने की जरूरत नहीं है, हमारे को ये डायग्राम समझना है. ये डायग्राम हमारे दिमाग में रहेगा, हमारा कोई भी MCQ गलत नहीं होगा बेस्ड ऑन द ECG फाइंडिंग ऑफ द coronary artery disease, right? Okay. What are one extra point that is very important to understand here? See, here is the left ventricle and here is the right ventricle. For example, a patient is having inferior wall MI, मतलब कि ये वाले एरिया में myocardial infarction हुआ है. Inferior wall MI हुआ है means the patient is having the changes in the second, third AVF. Second, third AVF में change होगा. Now what happens is, जब भी myocardial infarction होता है, जब भी हार्ट अटैक होता है, तो पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाती है, टेकीकार्डिया होता है. बट व्हाट हैपेंस इन inferior wall MI, सी हमारा जो हार्ट है वो डायफ्राम के ऊपर रखा हुआ है. सो इफ देयर इज अ inferior wall MI दैट इज गोइंग टू इरिटेट द डायफ्राम में इरिटेट हो जाएगा. अगर किसी को inferior wall MI हुआ है तो डायफ्राम में इरिटेट होगा, तो डायफ्राम के जस्ट नीचे वी नो दैट वी हैव अ क्रेनियल नर्व विच इज सिचुएटेड नियर द ईसोफेगस के साथ एक क्रेनियल नर्व जो है वो डायफ्राम को परफोरेट करके जाती है. द नेम ऑफ दैट क्रेनियल नर्व इज वेगस क्रेनियल नर्व. सो दिस वेगस नर्व इज हियर. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, इफ देयर इज अ inferior wall MI दैट कैन इरिटेट द वेगस नर्व. इफ देयर इज अ इरिटेशन टू द वेगस नर्व, आप बताइए वेगस नर्व जो होता है, वेगस इज अ 10th क्रेनियल नर्व. वेगस जो है वो सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक नर्व है? वेगस तो पैरासिम्पैथेटिक है. तो अगर किसी को inferior wall MI होता है, देयर इज इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द वेगस नर्व, मींस देयर इज इंक्रीज इन द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी. नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया कि जब भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, लेकिन आप देखो inferior wall MI के अंदर तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है. पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का बढ़ना मतलब कि हार्ट रेट का कम होना. तो inferior wall MI अकेला ऐसा MI है जिसके अंदर हार्ट रेट कम हो सकती है. द ओनली MI विच कैन प्रेजेंट एज ब्रेडिकार्डिया, inferior wall MI. एक और चीज हो सकती है inferior wall MI में, आप देखो ये इरिटेशन स्टमक तक जा सकता है, और उसकी वजह से इस पेशेंट के स्टमक का जो भी कंटेंट है, द पेशेंट विल हैव द एपिगैस्ट्रिक पेन एंड द पेशेंट कैन हैव द नोजिया एंड वॉमिटिंग. सो अलॉन्ग विद डिक्रीज इन द हार्ट रेट, द पेशेंट कैन ऑल्सो हैव द नोजिया एंड वॉमिटिंग, epigastric discomfort. Most of the MI they are going to present as chest pain. लेकिन ये एक ऐसा MI है जो epigastric pain, nausea, vomiting करके आता है. तो पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि एसिडिटी हो रही है. एसिडिटी नहीं हो रही. व्हाट इज हैपनिंग इज inferior wall MI हुआ है, उसका इरिटेशन स्टमक तक जा रहा है, एंड द पेशेंट इज हैविंग nausea, vomiting because of that, and there is decrease in the heart rate also, bradycardia, right? So this is the inferior wall MI. There is a special lead that is called as V4R. Now, what is the meaning of V4R? See, if you look at the inferior wall is made up of left ventricle as well as the right ventricle. Left और right ventricle के दोनों का पार्ट आ रहा है. तो जब inferior wall MI होता है, कभी कभी राइट वेंट्रिकल वाला जो ये वॉल है ये ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. तो अगर मेरे को ये पता करना है कि inferior wall MI हुआ है, ये तो समझ में आ गया बाई लुकिंग एट द लीड. सेकंड थर्ड AVF में चेंज आ रहा था, inferior wall MI है.
लेकिन मुझे अब ये पता करना है कि इंफीरियर वॉल में राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें एक स्पेशल ईसीजी करना पड़ेगा। हम नॉर्मली लीड्स कैसे लगाते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 V6, मतलब V4 यहां पे आ रहा है लेफ्ट साइड में। अगर मेरे को ये पता करना है कि राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व हुआ है नहीं हुआ है, तो बाकी सारी लीड्स तो जहां है वहीं लगा लो। ये V4 को यहां से लेफ्ट साइड से उठा के इसको लगाना है राइट साइड में, और वापस से ईसीजी निकालनी है। और उस लीड का नाम जो आपने राइट साइड में लगाया, इसका नाम हो जाएगा V4R। अगर आपको V4R के अंदर चेंज देखने को मिल जाए, मतलब कि V4R के अंदर भी SC एलिवेशन आ रहा है, then yes, the right ventricle has also been involved, means the patient is having right ventricle myocardial infarction, RVMI. Again, I am repeating the statement. It's a very important statement. See, if there is an inferior wall MI, the patient can present as bradycardia, nausea and vomiting. Inferior wall MI लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों को इन्वॉल्व कर सकता है। हमें अगर ये पता करना है कि राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व हुआ है नहीं हुआ है, हमें एक अलग ईसीजी करना पड़ेगा जिसमें V4 लीड लेफ्ट साइड में नहीं लगा के हम राइट साइड में लगाएंगे और ईसीजी निकालेंगे। उसको हम बोलेंगे V4R। अगर V4R में चेंज आ रहा है मतलब कि राइट वेंट्रिकल MI हुआ है। डन? ओके, सो दीज आर द वेरियस ECG चेंजेस दैट कम्स टू द कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। ECG वैसे तो हम एक अलग पूरे सेपरेट वीडियो में वापस से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में 5 ECG चेंजेस होते हैं एंड दे आर गोइंग टू अकर इन सम पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लीड्स। डन? द नेक्स्ट इज द कार्डियक मार्कर्स। मैंने आपको जब ये पूरा चैप्टर चालू हो रहा था ना, तभी मैंने आपको बताया था कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं। दीज आर द कार्डियक एंजाइम्स, द ट्रोपोनिन्स और द वेरियस अदर कार्डियक एंजाइम्स व्हिच आर देयर इन द कार्डियोमायोसाइट्स। वो जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल था जो फट जाता है मायोसाइट तो बाहर आता है। सो व्हाट आर द कार्डियक मार्कर्स वी आर हैविंग? व्हेन कम्स टू कार्डियक मार्कर, whenever there is an infarction, the first cardiac marker, the earliest to increase, it is heart fatty acid binding protein. Heart fatty acid binding protein. This is the first molecule that is going to present in the blood. अगर heart fatty acid binding protein option में नहीं दिया है, then the second best answer is myoglobin, the earliest to increase. What is the best cardiac marker? The best cardiac enzyme is troponin. We have the two types of troponin, troponin I and troponin T. The I is better. और आप ऐसे याद रख लो, I is for important. I जो है important है। देन द मार्कर ऑफ री इन्फेक्शन। मतलब कि मान लीजिए एक पेशेंट को MI हुआ, आपने एडमिट किया, 2 दिन हो गए, सब कुछ ठीक चल रहा था और उसको वापस से MI मतलब वापस से चेस्ट पेन हुआ, हमें लग रहा है यार इसको वापस से MI आ गया। तो री इन्फेक्शन को चेक करने के लिए आइदर यू विल चेक क्वांटिटेटिव ट्रोपोनिन, मीन्स यू विल कंपेयर द ट्रोपोनिन विच वॉज देयर 2 days बैक एंड राइट नाउ हाउ मच इज द ट्रोपोनिन। आप उसकी क्वांटिटी को चेक कर लो, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इफ नॉट, then the second best answer is CPK-MB. The next is the future predictor. There is a cardiac markers that can predict that there is a chance of atherosclerosis in the future or not, and the name of that is highly sensitive C-reactive protein. HSCRP is not of much of practical value because this is neither specific nor sensitive. Then we have SGOT. कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर थोड़ा सा SGOT भी होता है। तो जब भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है तो SGOT थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैसे तो SGOT मेनली लीवर के अंदर होता है, बट थोड़ा सा मसल्स के अंदर भी होता है। तो जब भी MI होगा तो SGOT बढ़ जाएगा। देन वी हैव द LDH। हमने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है, LDH जो होता है टोटल 5 टाइप का होता है। देयर आर 5 सब टाइप्स। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर टाइप 2 LDH जो होता है, नॉर्मली द टाइप 2 LDH इज मोर देन द टाइप 1 LDH। नॉर्मली टाइप 2 जो होता है वो ज्यादा होता है टाइप 1 से। आप इस डायग्राम को देखिए, इसके अंदर येलो कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है टाइप 2 LDH को। सो येलो कलर इज द टाइप 2 एंड ये जो पर्पल कलर में रिप्रेजेंट किया हमने दैट इज टाइप 1। सो अगर आप देखो ओवरऑल कौन सा LDH ज्यादा है, ओवरऑल विच LDH इज मोर, इट इज द टाइप 2। ओवरऑल विच LDH इज मोर इज टाइप 2, द येलो कलर वन। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज चेंज कर लूं, नॉर्मली हार्ट की मसल के अंदर कौन सा LDH ज्यादा होता है? नॉर्मली हार्ट के अंदर कौन सा ज्यादा है? LDH1। ओवरऑल कौन सा ज्यादा है? LDH2। दिस इज अ नॉर्मल वन। बट अगर किसी को MI हो जाए, if there is myocardial infarction, then what is going to happen is the cardiomyocyte will rupture. A lot of LDH1 will come out, and in that case, it might happen that the one will get more than the two, which is called as LDH flip. This is the flipping effect of LDH. So
इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कौन सा एलडीएच बढ़ जाएगा? 1. ओवरऑल नॉर्मली कौन सा ज्यादा होता है? 2 ज्यादा होता है. So these are the various blood tests that we can do in myocardial infarction. Various blood tests. सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको सिंगल बेस्ट सेलेक्ट करना है, ट्रोपोनिन आई इज द सिंगल बेस्ट कार्डियक एंजाइम, राइट? So these are the various cardiac biomarkers that we have. Coming to the next one, that is the CT scan. Now when it comes to the non-contrast CT scan, the non-contrast CT scan is not of much value when it comes to cardiology. See here. Here is the coronary artery and the atherosclerosis. आपने पैथो में पढ़ा होगा कि जब भी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जब भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा कैल्शियम जमा हो जाता है. बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हमने पैथो में पढ़ा होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टैटिक. एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. तो जब हम नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करते हैं, उसके अंदर हमारे को कैल्शियम अच्छे से दिखता है. तो अगर किसी की हार्ट की आर्टरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखा है और अगर आपने उसका सीटी स्कैन किया तो आपको कैल्शियम दिख जाएगा. और कैल्शियम कैसा दिखेगा? व्हाइट कलर में दिखेगा. सो हियर यू कैन सी इफ वी डिड द नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन ऑफ द हार्ट, बाकी कुछ तो अच्छे से नहीं दिख रहा है बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू इतना अच्छा नहीं दिखता है, बट यू कैन सी दीज व्हाइट कलर्ड डॉट्स विच आर देयर. These white colored dots that you can see, these are the examples of the dystrophic calcification. These are the examples of the dystrophic calcification in the coronary artery, right? So this is the non-contrast CT scan that can be there. The most common artery to undergo atherosclerosis. Overall, the most common artery, आप बताइए, which is the most common artery to undergo atherosclerosis? LAD, LCAX, LMCA, RCA. Which is the most common artery to undergo atherosclerosis? Yes, it is none of them. It is none of them. The most common artery to undergo atherosclerosis is abdominal aorta. Because मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सी coronary artery, मैंने तो पूछा ओवरऑल कौन सी आर्टरी में सबसे ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो एओर्टा के अंदर होता है. अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है, द मोस्ट कॉमन coronary artery to undergo atherosclerosis, the most common coronary artery to undergo atherosclerosis, then your answer was correct. That was LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विडोज आर्टरी. देखिए हमारे एग्जाम में क्या होता है, रिजल्ट जो होता है ना, वो बहुत कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करता. रिजल्ट डिपेंड करता है इजी क्वेश्चन पे, कि हाउ गुड यू आर एबल टू टेकल दोज इजी क्वेश्चन. इफ यू आस्क इवन योर सीनियर्स ऑल्सो, even how good they have scored, maybe very good rank or maybe very good score, but if you ask them after the exam that how many silly mistakes you have did, they will say 5, 10, 15 silly mistakes. आते क्वेश्चन गलत कर देते हैं, and that makes the huge difference in the exam. Same here, you were knowing the answer, right? This most common coronary artery, it's LAD. Overall aorta. बट वॉट हैपन्स इज इजी क्वेश्चन आता है, हम रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं, ये तो आता है, और फिर हम वी डायरेक्टली जंप टू द आंसर एंड वी मेक अ मिस्टेक दैट. सो वी हैव टू प्रैक्टिस इन सच अ वे दैट वी आर गोइंग टू मिनिमाइज दीज सिली मिस्टेक्स. इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप अस. देखिए कोई से भी एग्जाम के अंदर रिजल्ट कभी भी 2 फैक्टर पे डिपेंड नहीं होता. एक, आपने कितना सारा पढ़ा है, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट. सेकेंड, हाउ good you are in tackling the difficult question. The result is mainly dependent, जो आपने पढ़ा है वो कितना अच्छे से आपको आता है और कितने अच्छे से आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो. सो क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स. सेकेंड, द डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी भी हमें अच्छी रैंक या अच्छा स्कोर नहीं दिलाता. इट इज द ईजी क्वेश्चंस कि हमने वो सही किए नहीं किए. बिकॉज इफ यू मेक द मिस्टेक्स, बिकॉज उनके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना यार. चाहे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सही करो, चाहे ईजी क्वेश्चन सही करो, मार्क्स तो आपको सेम ही मिलना है दोनों के लिए. और क्योंकि इजी के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, तो हमें एग्जाम में उसको ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी. लेकिन हम करते हैं उल्टा, इजी क्वेश्चन तो डायरेक्ट जंप कर देते हैं आंसर, हाँ इसका तो यही होगा. और जो डिफिकल्ट है उसको वर्ड बाई वर्ड पढ़ रहे हैं, उसकी कोमा को भी पढ़ रहे हैं, उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, वो आता नहीं है तो वैसे ही गलत ही होना है. जो आता है उसको टाइम देके उसको सही कर लो फिर. सो मेक अ हैबिट लाइक दिस एंड द थिंग्स विल स्टार्ट स्लोली रोल डाउन. ओके, so this is the third test that we can do in a patient of coronary artery disease. Let's go to the next test. Very important, stress test. What is the meaning of stress test? मतलब कि हम कोई stress देंगे and we are going to see that how the heart is responding to that stress. Let's understand the concept behind that. ये बनाया कैसे, ये टेस्ट है क्या चीज है. देखिए, for example, there is a patient, he is having some amount of atherosclerosis. Here you can see some amount of atherosclerosis is there. Now what is happening is
जब भी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, द ब्लड सप्लाई इज गोइंग टू बी रिलेटिवली लेस. Now, as I go into this, let's answer one question. For example, there are two different hearts in front of us. एक हार्ट जो है वो बीट कर रहा है 70 की स्पीड पे. The second heart is beating at a rate of 100. Which heart requires more blood supply? Which heart requires more energy, more oxygenated hemoglobin, more blood supply? The heart which is beating at a higher rate. अगर हार्ट रेट कम रहता है तो उसको कम ब्लड सप्लाई चाहिए होता है, अगर हार्ट रेट ज्यादा है तो ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए. मीन्स व्हाट आई कैन से इज the demand of myocardium is directly proportional to heart rate. Demand of myocardium is directly proportional to heart rate. अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो मायोकार्डियम की डिमांड भी बढ़ जाएगी. मीन्स आप देखिए इस पेशेंट को देखिए, ये एक सेम पेशेंट है, इसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम थी, लेकिन क्या हो रहा था कि जब इसकी हार्ट रेट, व्हेन द हार्ट रेट वाज लेस, जब इस पेशेंट की हार्ट रेट कम थी तो ये जो ब्लड जा रहा था इट वाज इनफ. There was no ischemia, there was no chest pain. बट लेकिन इसी पेशेंट की जब हम हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, जैसे इसको बोला कि दौड़ो, जैसे इसकी हार्ट रेट बढ़ाएंगे, इफ द हार्ट रेट इंक्रीजेस, देन द ब्लड सप्लाई विच इज हैपनिंग, नाउ दिस ब्लड सप्लाई इज नॉट इनफ एंड द पेशेंट इज डेवलपिंग ischemia. There is going to be ischemia, and the moment there is going to be ischemia, the patient will develop the chest pain. So what we have understood is कि अगर किसी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस है, now what is going to happen is जब उसकी हार्ट रेट कम होगी तो उसको there is not going to be ischemia, the patient will not have the chest pain, but if we increase the heart rate, there is a chance that the ischemia will happen and we will have the chest pain, right? So we have devised a test. इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एक टेस्ट बना दिया. मान लीजिए एक पेशेंट आया आपके पास में, वो ये बोल रहा है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं बहुत तेज चलता हूं, जब भी मैं सीढ़ियां चढ़ता हूं तो मेरे को बहुत तेज चेस्ट पेन होता है. आई स्टार्टेड स्वेटिंग, आई हैव टू टेक रेस्ट, और जैसे ही मैं वहां पर रेस्ट ले लेता हूं मेरा चेस्ट पेन धीरे धीरे ठीक हो जाता है. राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग चेस्ट पेन, बट दिस हैज हैपेंड ट्वाइस इन लास्ट 2 days. सो हाउ यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दैट? वॉट यू हैव अंडरस्टूड इज बाई हिज हिस्ट्री कि जब भी वो ही इज डूइंग सम स्ट्रेस, उसका हार्ट रेट बढ़ता है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है. हार्ट रेट कम होता है, रेस्ट ले लेता है, ठीक हो जाता है. So to confirm this, you will simulate the same condition in the hospital. हम उस पेशेंट को स्ट्रेस देंगे, उसकी हार्ट रेट बढ़ाएंगे, और हम ये देखेंगे कि हार्ट रेट बढ़ाने से उसको इस्चेमिया होता है या नहीं होता है. और कैसे पता कर सकते हैं इस्चेमिया? एक तो उसको चेस्ट पेन होने लग जाएगा. सेकंड, मुझे बताओ, इफ यू आर लिसनिंग टू वेरी केयरफुली, मायोकार्डियम में सबसे ज्यादा वुनरेबल एरिया कौन सा होता है इस्चेमिया के लिए? विच इज द मोस्ट वुनरेबल एरिया फॉर इस्चेमिया इन मायोकार्डियम? इन मायोकार्डियम के अंदर इस्चेमिया होने के लिए सबसे वुनरेबल एरिया था सब एंडोकार्डियल एरिया. एंड सब एंडोकार्डियल इस्चेमिया होगा तो ईसीजी में क्या आएगा? एसटी डिप्रेशन. सो अब हम इस पेशेंट को क्या करेंगे? ये जो पेशेंट हमारे पास में आया, जो ये बोल रहा था कि जब भी वो स्ट्रेस करता है, जब भी वो तेज चलता है, उसको चेस्ट पेन होता है, हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू मेक हिम वॉक ऑन द ट्रेडमिल. हम उसको ट्रेडमिल पे चलाएंगे और हम उसकी हार्ट रेट बढ़ाएंगे, एंड साइमल्टेनियसली वी विल डू द ईसीजी. हम ईसीजी में ये देखना चाह रहे हैं कि हार्ट रेट बढ़ाने से अगर इस्चेमिया होगा तो एसटी डिप्रेशन होने लग जाएगा, और वो हमें दिख जाएगा. इफ ही इज हैविंग इस्चेमिया, इफ ही इज हैविंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस टेस्ट. सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेस टेस्ट, बेसिकली हम स्ट्रेस टेस्ट में क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू गिव द एक्सर्शन एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट रेट. अब ये जो एक्सर्शन है, आप फिजिकल एक्सर्शन भी दे सकते हो. यू कैन गिव द फिजिकल स्ट्रेस और यू कैन गिव द केमिकल स्ट्रेस. सो व्हेन कम्स टू स्ट्रेस, हमारे को तो देखो अल्टीमेटली हार्ट रेट बढ़ाना है. कैसे बढ़ा सकते हो? आप उस पेशेंट को फिजिकल एक्सर्शन दे दो, उसको टीएमटी के ऊपर दौड़ाओ, ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ाओ, फिजिकल एक्सर्शन देंगे, हार्ट रेट बढ़ाएंगे, एंड विल सी दैट वेदर द इस्चेमिया इज हैपनिंग और नॉट. बट मान लो ये जो पेशेंट आया था आपके पास में, इस पेशेंट को पोलियो हो रखा है, ही इज अनेबल टू वॉक, उसके लिम्ब का एम्पुटेशन हो रखा है, देन आप उसको ट्रेडमिल पे तो चला नहीं सकते. तो फिर हम कैसे उसकी हार्ट रेट बढ़ा सकते हैं? हमारे पास तो ड्रग्स भी तो हैं जिससे हम हार्ट रेट बढ़ा सकते हैं. सो वी कैन गिव द केमिकल स्ट्रेस. इफ यू आर अनेबल टू डू द फिजिकल स्ट्रेस, यू कैन गिव द केमिकल स्ट्रेस सच एज डोबुटामिन. आप उसको डोबुटामिन का इंजेक्शन लगाओगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट रेट एंड यू कैन चेक द इस्चेमिया. सो स्ट्रेस टेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. हमें क्या करना है? कैसे भी करके हार्ट रेट बढ़ानी है और फिर देखना है कि इस्चेमिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है. द कॉमन स्ट्रेस टेस्ट दैट वी डू इज द टीएमटी. टीएमटी हमारे लिए कॉमन स्ट्रेस टेस्ट है. देखिए कैसे करते हैं. ट्रेडमिल टेस्ट, TMT. So a patient came to us and he was saying that whenever he is doing exertion, उसको chest pain होता है, रेस्ट लेने पे ठीक हो जाता है. तो हमने कहा ठीक है, हम TMT कर लेते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट कर लेते हैं. We will use a protocol that is called as the Bruce protocol. Bruce protocol.
तो हमने पेशेंट को सब समझा दिया कि आपको इस ट्रेडमिल पे चलना है, धीरे धीरे हम इस ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाएंगे और इंक्लाइनेशन भी बढ़ाएंगे, आपको इस पे चलना है। अगर आपको बीच में कभी भी चेस्ट पेन हो जाए तो इस मशीन को आप तुरंत रोक सकते हो। अगर और साइमल्टेनियसली आप क्या करोगे, आप यहाँ पे खड़े हो, आप कंटिन्यूसली ईसीजी देखते रहोगे। द मोमेंट यू विल सी एसटी डिप्रेशन आने लग गए, यू विल स्टॉप द टेस्ट, राइट। सो यू द पेशेंट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। अब पेशेंट ने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि डॉक्टर साहब मेरे को समझ में आ गया कि मेरी आप हार्ट रेट बढ़ाओगे और ये देखोगे इस्चेमिया होगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो ये बोल रहा है यार मेरे को इस पर चलना कितनी देर है, मेरा टारगेट क्या है, मेरे को कौन सी हार्ट रेट तक पहुंचना है। देन यू विल से दैट अकॉर्डिंग टू द ब्रूस प्रोटोकॉल द टारगेट हार्ट रेट इज 220 माइनस एज। मान लीजिए पेशेंट की एज थी 40 ईयर्स, तो उसका टारगेट हार्ट रेट हो गया 220 माइनस 40 मीन्स 180, उसको 180 तक पहुंचना है। इफ द पेशेंट इज एबल टू अचीव इवन 85% ऑफ द टारगेट हार्ट रेट, अगर वो 85% तक भी पहुंच गया और उसको चेस्ट में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, देन वी विल से दैट टीएमटी इज नेगेटिव, कि इसको ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिव है, इसको कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है। लेकिन अगर 85% से पहुंचने से पहले उसको चेस्ट पेन होने लग गया, या वो बेहोश हो गया, या उसके एसटी डिप्रेशन आने लग गए, यू विल स्टॉप द टेस्ट, द 85% टारगेट हार्ट रेट नॉट अचीव्ड। वंस इट इज नॉट अचीव्ड यू विल से टीएमटी इज पॉजिटिव, टीएमटी इज पॉजिटिव। टीएमटी जब पॉजिटिव आता है तो उसमें हम एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं और उस स्कोर का नाम होता है डुक स्कोर। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट याद रखना है डुक स्कोर इज रिलेटेड विद व्हाट, डुक स्कोर इज रिलेटेड विद द ट्रेडमिल टेस्ट। टीएमटी जब करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है वो डुक स्कोर में आता है। अब यहां पे देखिए आप, व्हेन दिस पेशेंट कम्स इन द बिगिनिंग, जब उसने चलना चालू किया एट द स्टार्ट, लुक एट द एसटी सेगमेंट, हियर इज द एसटी सेगमेंट। आप देखो एसटी सेगमेंट बिल्कुल नॉर्मल था, बट व्हेन ही वाज वॉकिंग 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 आफ्टरवर्ड्स, लुक एट द एसटी सेगमेंट, इट हैज वेंट डाउन, एसटी डिप्रेशन आने लग गया। दिस इज हाउ द ईसीजी चेंज विल लुक इन अ टीएमटी टेस्ट इफ इट इज पॉजिटिव एसटी डिप्रेशन। और कितना एसटी डिप्रेशन आना ही आना चाहिए, कम से कम द एसटी डिप्रेशन एटलीस्ट हैज टू बी टू स्मॉल बॉक्सेस, two small boxes. One small box is 1 mm. So ST depression of at least 2 mm should be there. At least 2 mm. And it should be in at least 2 consecutive leads or contagious leads. 2 mm का होना चाहिए और 2 contagious leads में आना चाहिए. Then only this ST depression is significant. And this is the concept of the treadmill test. This is the concept of the treadmill test. Right? The next is the 2D echo. Now what is the meaning of 2D echo? See, 2D echo का मतलब ये है, what we are going to do is we are going to do the sonography of the heart and we can see any chamber. For example, here is the left ventricle. Look at the left ventricle. Normally left ventricle ऐसे contract करता है, systole, diastole, systole, diastole. अगर मैं आपको एंगल चेंज कर दूं, ऐसे दिखाऊं, systole, diastole, systole, diastole, तो आप देखो पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, सिस्टोल डायस्टोल। सो नॉर्मली द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑन इकोकार्डियोग्राफी, द एंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल शुड कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस, शुड कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आया, आप उसकी इकोकार्डियोग्राफी कर रहे थे और आपने देखा, से फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बाकी सब जगह तो बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट एक एरिया ऐसा था लेफ्ट वेंट्रिकल का जो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था। से फॉर एग्जांपल दिस वन, ये वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब कि कुछ इस तरीके से, बाकी सारा एरिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आप देखो एक एरिया ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। ये जो एरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस रेफर्ड एज, बिकॉज दिस इज अ फोकल एरिया, दिस इज अ रीजनल एरिया विच इज नॉट हैविंग एनी मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड एज RWMA, रीजनल वॉल मोशन एब्नॉर्मैलिटी। मोशन एब्नॉर्मैलिटी की मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो इस पेशेंट में RWMA प्रेजेंट है, RWMA प्रेजेंट। अगर किसी भी पेशेंट में RWMA होता है और हमें ये पता करना है कि ये जो RW मतलब यहाँ की जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही, ये समझ में आ गया, लेकिन ये कार्डियोमायोसाइट जिंदा है कि मर गई। सो व्हेनेवर देयर इज अ RWMA, द नेक्स्ट टेस्ट दैट यू कैन डू इज यू कैन चेक द वायबिलिटी, चेक फॉर वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब कि यहाँ की जो कार्डियोमायोसाइट्स है वो जिंदा है या नहीं है। विच टेस्ट वी कैन डू द पेट स्कैन, वी कैन डू थेलियम स्कैन, एंड दीज स्कैन विल टेल अस दैट वेदर द कार्डियोमायोसाइट इन दिस एरिया इज अलाइव और डेड। देयर वाज वन क्वेश्चन इन नीट पीजी दैट विच इज द बेस्ट वायबिलिटी टेस्ट, द बेस्ट वायबिलिटी टेस्ट इज पेट स्कैन, पेट स्कैन।
राइट. सो वी व्हाट वी हैव अंडरस्टूड हियर इज दैट जब भी हम इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, व्हेन वी डू द इको इन अ पेशेंट ऑफ कॉर्निया आर्टरी डिजीज, विल ट्राई टू सर्च फॉर आरडब्ल्यूएमए कि पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. इफ देयर इज सम एरिया व्हिच इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, आई विल जस्ट शो यू अ वीडियो. जस्ट शो यू अ वीडियो. सी हियर. आप ये टाइम नोट कर लेना. नहीं नहीं, बंद मत करो आप. एक अभी उस पर टाइम लिखा आ रहा है क्या? तो टाइम नोट करना, यहाँ से कट करना है ना. मतलब वो वीडियो कंटिन्यू रखना. मेरे को क्या वो वीडियो इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए. नहीं, आप चालू रखो 1 मिनट, मतलब आप भी मिल जाएगा. पता. ये ऊपर से कट क्यों रहा है वीडियो? हाँ, चालू कर रहा हूँ. ओके, सो हियर यू कैन सी इन दिस वीडियो, फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर. आप नीचे वाला देखो. दिस लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टिंग सो नाइसली, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. बट इफ यू सी इन द अदर वन, द अपर वन, आप उसमें अब पहले तो आप नीचे वाला वीडियो देखो. फर्स्ट लुक एट द लोअर हाफ. लुक एट द लेफ्ट वेंट्रिकल. इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग सो नाइसली, पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. नाउ लुक एट द अपर वन. ऊपर वाला पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन देखो. एक एरिया ऐसा है लेफ्ट वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, ऊपर ही ऊपर वाला एरिया. राइट, दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग एट ऑल. That is called as RWM. That is called as RWM, right? So this is the finding that you might get on 2D echo. The next is a concept that is called as hibernating myocardium. ये क्या होता है? To understand this, let's understand the word hibernation. आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे. For example, let's say there is a crocodile. He is living in an area where the temperature goes below zero. और जब विंटर में वहां पे टेम्परेचर बिलो जीरो चला गया, मीन्स द कंडीशन बिकम्स अनफेवरेबल. तो ये जो क्रोकोडाइल है, ये इस पानी के अंदर कुछ इस तरीके से सबमर्ज्ड पड़ा रहेगा. एंड ही इज नॉट गोइंग टू हैव एनी मूवमेंट, नो मूवमेंट. ऐसा लगेगा जैसे ये मर गया. देर इज नो मूवमेंट. बट जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी, मतलब वापस से समर आएगा, द मूवमेंट विल स्टार्ट हैपनिंग. मूवमेंट विल स्टार्ट हैपनिंग, राइट, जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी. तो ये जो फेज था, इस फेज को हम बोलते थे हाइबरनेशन, कि ये जो क्रोकोडाइल है ये हाइबरनेशन में चला गया, क्योंकि कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो ये मूवमेंट बंद हो गया इसका. अब ये हाइबरनेशन हमारे को कार्डियोलॉजी में कैसे रिलेट कर रहा है, देखिए. मान लीजिए एक पेशेंट आया, आपने उसका इकोकार्डियोग्राफी किया, और उसके अंदर व्हाट हैपेंड वाज कि लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन एक एरिया ऐसा था लेफ्ट वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था. और हमें पता है कि अगर कोई एरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड एज RWM. तो पेशेंट को RWM था. जैसे ही RWM था, हमें ये पता करना था यार जो इसका मायोकार्डियम है वो वायबल है या नहीं है, मतलब कि यहाँ की जो कार्डियोमायोसाइट्स है वो जिंदा है या मर गई. सो वी चेक द मायोकार्डियल वायबिलिटी. हमने मायोकार्डियल की वायबिलिटी चेक की, और मायोकार्डियम में वायबिलिटी प्रेजेंट थी. मीन्स वी डिड द पेट स्कैन, और हमें पता लगा कि यहाँ पे जो मायोसाइट्स है वो अलाइव है. तो फिर क्वेश्चन आ गया कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? इफ द मायोसाइट्स आर अलाइव, व्हाई दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग? वी चेक द ब्लड सप्लाई. जब हमने ब्लड सप्लाई चेक की, बाकी सब जगह तो ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा था, लेकिन उस जगह पे ब्लड सप्लाई बहुत ही कम था. मीन्स द कंडीशन वाज अनफेवरेबल. दैट इज व्हाई द मायोसाइट्स वर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग नाइसली. क्योंकि थोड़ा सा ब्लड जा रहा था, इस वजह से यहाँ की मायोसाइट जैसे तैसे जिंदा थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी. सो नाउ व्हाट वी डिड वाज वी डिड द रीवस्कुलराइजेशन. हमने रीवस्कुलराइजेशन किया, मतलब कि वापस से ब्लड सप्लाई को रीस्टोर किया. और जैसे ही रीवस्कुलेशन किया, अब ब्लड सप्लाई अच्छे से जाने लग गई उस एरिया में भी, तो वो एरिया भी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया, जैसे कि दूसरे एरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे. सो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम. मीन्स द कंडीशन वाज नॉट फेवरेबल, कम ब्लड जा रहा था इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही ब्लड सप्लाई आपने अच्छे से कर दी, द मूवमेंट स्टार्टेड हैपनिंग. सो द डायग्नोसिस फॉर दिस कंडीशन इज हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम. This is hibernating myocardium. If you see the next one, what? बस 2 मिनट है, चैप्टर खत्म होना है. क्या हुआ?
उधर का लाइव स्टार्ट होने वाला, हमारे पास डिवाइस एक ही है वो जो कैमरे से सिग्नल भेजता है। फिर वो लाइव तो कितने घंटे चलेगा? अभी के लिए तो आधा घंटा है। भाई चैप्टर तो खत्म कर लो 2 मिनट. The next is, what is happening here is, if you see the next patient, it's a different patient. What is happening in him is, the blood supply is happening very nicely in all the areas. You can see, ये पेशेंट हमारे पास में आया, हमने इसका इकोकार्डियोग्राफी किया और हमें मिला एक एरिया ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है. नहीं कर रहा है मतलब कि इसको RWMA हो रखा है, रीजनल वॉल मोशन एब्नॉर्मैलिटी है. तो हमें ये पता किया हमने सबसे पहले कि यार यहाँ की मायोसाइट जिंदा है या मर गई. सो हमने पेट स्कैन किया और पता लगा कि यार पेट स्कैन में कि यहाँ की मायोसाइट जिंदा है, अलाइव है. देन व्हाई दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग? व्हाई दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग? बाकी सब जगह तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे तो ब्लड सप्लाई भी अच्छा है, कंडीशन भी फेवरेबल है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मायोसाइट्स भी जिंदा है. अगर ऐसा हो जाए कि ब्लड सप्लाई भी अच्छा है, मायोसाइट्स भी जिंदा है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टन्ड मायोकार्डियम. इट्स कॉल्ड एज स्टन्ड मायोकार्डियम. स्टन्ड मायोकार्डियम. स्टन्ड मायोकार्डियम में देयर इज नो ट्रीटमेंट, देयर इज नो रोल ऑफ रीवस्कुलराइजेशन. देयर इज नो रोल ऑफ रीवस्कुलराइजेशन. हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो रोल ऑफ रीवस्कुलराइजेशन, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो वैसे ही अच्छा था, तो रीवस्कुलेशन का कोई रोल नहीं है. इसको हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे. ये क्यों होता है? इट अकर्स बिकॉज ऑफ चैनलोपैथी, because of some channel problems, the chloride channels, there are some channel problems that can happen. The pathogenesis is not important, but there is no treatment of stunned myocardium. So what is important for us is the hibernating myocardium. Decreased blood supply की वजह से अगर मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, आप वापस उसको रिवस्कुलाइज कर लो तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, and that is called as the hibernating myocardium. Right? Thank you. In this video, we are going to discuss about the angiography, angioplasty. The combination of them is called as the percutaneous coronary intervention. एंजियोप्लास्टी जो होता है दैट इज स्टेंट प्लेसमेंट, उसका दूसरा नाम होता है पीटीसीए. एक्चुअली उसका पूरा नाम होता है पीटीसीए, दैट इज परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी. बट हम सिंप्लिसिटी के लिए केवल एंजियोप्लास्टी वर्ड यूज कर लेते हैं, बाकी स्टेंट प्लेसमेंट का जो टेक्निकल नाम हो गया वो हो गया पीटीसीए. अब देखिए व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड एज पीसीए. हाउ इट इज डन? सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस एनिमेटेड वीडियो दैट we are going to inject a metallic wire. You can take any of the approach. You can insert the metallic wire in the radial artery or the ulnar artery or the femoral artery, whichever is convenient for you. You can inject in that. For example, let's say in this patient, the coronary artery, one of the coronary artery is having the atherosclerosis like this. Now to identify that कि ये कौन सी आर्टरी, कौन सी coronary artery में किस जगह पे ये ब्लॉक बना हुआ है, हमने femoral artery को चूज किया और femoral artery में we have inserted a metallic wire. Now once you are going to insert the metallic guide wire, you are going to insert it proximally डालते रहेंगे और साथ में हम फ्लोरोस्कोपी करके देखते रहते हैं कि ये वायर कहाँ तक पहुँचा. Once we will reach till the root of aorta, then we are going to remove the guide wire and then we are going to insert the another catheter wire. So here is our guide wire that is going in the aorta, is going proximally. We have reached in the root of aorta. Here is the root of aorta. वहीं से the coronary arteries are originating, the anti-aortic sinus, the left posterior aortic sinus. Now we are going to remove this and we are going to put the catheter there. Once we have done this, now we are going to inject the dye. Now you can see that we are injecting the dye here and this dye is going to flow in the coronary artery and we can identify that where is the block. So for example, the moment we injected the dye, and here you can see that we are injecting the dye and we have located that, okay, here is the block. Once we have located the block, now we need to do the angioplasty. So we are going to insert a second guide wire. We will reach there. This is a special one. It is having an inflatable balloon at the end. So now we are going to inflate the balloon. जैसे balloon inflate होगा, this atherosclerotic plaque will be compressed और हम ये चाहते हैं कि ये compress ही रहे और it is not going to be regenerated. So we are going to put a metallic spring there that is called as the stent and this entire procedure is called as the angioplasty. जो पहले किया that was angiography and this stent placement which we are going to do, this is how the stent looks like. So now we are going to do the stent placement and this is how the stent placement will be done and once it's done is the angioplasty. Now when you do the angiography, what you might find is that कि कितनी आर्टरीज में ब्लॉक है, कि एक ही वेसल में ब्लॉक है या दो वेसल्स में ब्लॉक है. अगर एक ही ब्लड वेसल में ब्लॉक आ रहा है तो सिंगल वेसल, दो में आ रहा है तो डबल वेसल और तीन कॉर्नरी आर्टरीज में अलग अलग जगह पे ब्लॉक आ रहा है तो ट्रिपल वेसल डिजीज.
अगर एसवीडी या डीवीडी है देन कैन प्लान फॉर पीटीसीए. पीटीसीए मीन्स द स्टेंट प्लेसमेंट, मीन्स द एंजियोप्लास्टी. पहले जो हम स्टेंट यूज करते थे वो तो बेयर मेटल स्टेंट होते थे. आजकल जो हम यूज कर रहे हैं दीज आर द ड्रग कोटेड स्टेंट्स. We are using the drug coated stents. The drug coated stents that we are using nowadays, these are coated with sirolimus, paclitaxel. इनको सिवरोलिमस, पैस्लिटैक्सल, दीज आर द बेसिकली इज द एंटी कैंसर ड्रग, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ पे सेल्स रीजनरेट हो, एंडोथीलियल सेल्स रीजनरेट हो और क्लॉट फॉर्मेशन हो. तो एसवीडी और डीवीडी है तो स्टेंट प्लेसमेंट कर देंगे. लेकिन अगर टीवीडी है, ट्रिपल वेसल डिजीज है, तो फिर हम स्टेंट प्लेसमेंट नहीं करते. फॉर टीवीडी, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिपल वेसल डिजीज, प्लान फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, सीएबीजी को प्लान करेंगे. coronary artery bypass grafting. How we are going to do that? If you see this image, that will give you a good idea. For example, this patient is having multiple blocks in the different area. यहाँ पे भी ब्लॉक है, यहाँ पे भी ब्लॉक है, अलग अलग जगह पे ब्लॉक हो रखे थे. And the patient was having triple vessel disease कि 3 जगह पे ब्लॉक हो रखे थे. So we have planned for the bypass. So you can see that we have taken some another vessels as a graft and we have connected from the aorta directly to this particular junction, or from the subclavian artery we have connected like this. So we have used these grafts. तो अगर ग्राफ्ट करके इस तरीके की ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सीएबीजी. अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि ये बाईपास ग्राफ्ट तो समझ में आ रहा है, बट ये ग्राफ्ट वेसल्स आएंगे कहाँ से. सो फॉर ग्राफ्ट, ये ग्राफ्ट हम किसके बनाएंगे? फॉर ग्राफ्ट वी हैव लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, या तो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी को यूज कर लेंगे, दैट इज द बेस्ट ग्राफ्ट. अगर वो यूज नहीं करना चाह रहे, वी कैन यूज द ग्रेट सेफेनस वेन, जो हम पहले यूज करते थे, आजकल इतना कॉमनली यूज नहीं करते. वी कैन यूज रेडियल आर्टरी ऑल्सो. सो दीज आर द 3 ग्राफ्ट्स दैट कैन बी यूज. सो एक क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ ग्राफ्ट फॉर द सीएबीजी, लीमा, ग्रेट सेफेनस वेन एंड द रेडियल आर्टरी. इनको हम यूज कर सकते हैं. So this is all about the SVD, DVD and TVD. Now coming to the types of myocardial infarction. There are total 5 types of myocardial infarction we have. The first one is the classical one, which we have discussed in the other videos also. For example, the patient is having atherosclerotic plaque, और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्लाक था ये रप्चर हो गया. द प्लाक रप्चर हुआ तो प्लेटलेट एग्रीगेट हुए, क्लॉट फॉर्मेशन चालू हो गया. जब ये सारी चीज़ें होती है उसकी वजह से ब्लड सप्लाई बहुत कम हो गया एंड द पेशेंट हैज़ डेवलप्ड द इन्फाक्शन. ब्लड सप्लाई कम होने से इन्फेक्शन हो गया. सो इफ डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक रप्चर इज लीडिंग टू एमआई, दैट इज कॉल्ड एज द टाइप 1 एमआई. सो इन टाइप 1 एमआई में क्या हुआ? देर इज डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम, डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई ड्यू टू प्लाक रप्चर. सो अगर प्लाक रप्चर होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ एमआई का, तो उसको बोल दिया टाइप 1 एमआई. अब देखिए टाइप 2 एमआई क्या होता है. टाइप 2 एमआई में ब्लड सप्लाई तो ठीक चल रहा है, कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लड सप्लाई का, बट व्हाट हैपेंड इज, फॉर एग्जांपल लेट्स से द पेशेंट इज हैविंग अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन. हमें पता है कि हाइपरटेंशन जिनको होता है उनकी लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है. सो व्हाट हैपेंड इज, बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन दिस पेशेंट हैज डेवलप्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी. लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गया. अब अगर मसल की हाइपरट्रॉफी हो गई तो मसल को तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, लेकिन आप देखिए ब्लड सप्लाई जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना ही हो रहा है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज अगेन देयर इज अ मिसमैच. अब सप्लाई तो ठीक हो रही है, लेकिन क्योंकि डिमांड बढ़ गई है तो रिलेटिवली ये सप्लाई कम पड़ेगी, और इस पेशेंट को यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है. सो इफ इन्फेक्शन हैपेंस, इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, if there is increase in the demand of myocardium की डिमांड बढ़ गई और उसकी वजह से मायोकार्डियल इश्चेमिया इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टाइप 2. सो टाइप 1 क्यों हुआ? टाइप 1 तो हुआ था सप्लाई कम होने की वजह से, और टाइप 2 क्यों हुआ? डिमांड बढ़ गई उसकी वजह से एमआई हुआ, तो टाइप 2 बोल दिया. टाइप 3 क्या होता है? टाइप 3 का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक पेशेंट को बहुत तेज चेस्ट पेन हुआ, स्वेटिंग हुई, बहुत टिपिकल टाइप का चेस्ट पेन हुआ, और जब उसको हॉस्पिटल लेके आ रहे थे ऑन द वे उसकी डेथ हो गई. सो देर इज सडन कार्डियक डेथ हुआ है, और जब हमने उसकी हिस्ट्री ली
तो उसकी हिस्ट्री सुन के ऐसा लग रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स बता रहे थे इसको बहुत तेज चेस्ट पेन हुआ था, स्वेटिंग हुई थी, ये सब हुआ था। तो हिस्ट्री सुन के लग रहा है कि इसको एमआई की वजह से इसकी सडन कार्डियक डेथ हुई है। सो सडन कार्डियक डेथ एंड हिस्ट्री इज सजेस्टिव ऑफ एमआई। हिस्ट्री से लग रहा है कि इसको एमआई की वजह से सडन कार्डियक डेथ हुआ है। तो फिर इस एमआई को कंफर्म करने के लिए आपको ऑटोप्सी करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू फाइंड द इन्फेक्टेड जोन। सी नॉर्मली जब हम मायोकार्डियम को देखते हैं, जब मायोकार्डियम को देखते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो जो इन्फेक्टेड जोन होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो इन्फेक्टेड जोन होता है, इसको देखने के लिए हम जो स्टेन यूज करते हैं, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। If you just remember the word tetrazolium, that is also enough. Tetrazolium, triphenyl tetrazolium chloride हम use करते हैं to see the infected zone of the MI. Now coming to the type 4 and type 5. What is type 4 is, for example, आपने पेशेंट को आज MI हुआ और उसके लिए आपने स्टेंट प्लेसमेंट किया, मीन्स यू डिड द एंजियोप्लास्टी। उसकी सब कुछ ठीक चल रहा था, ब्लड सप्लाई सब अच्छा चल रहा था, देयर वाज नो प्रॉब्लम। बट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स व्हाट हैपेंस इज, जहाँ पे स्टेंट लगाया था वहीं पे एथेरोस्क्लेरोसिस वापस जनरेट हो गया और ये स्टेंट जो है वो फेल हो गया। सो एंजियोप्लास्टी की और उसके बाद में स्टेंट फेलियर हुआ। जैसे स्टेंट फेल हो जाएगा, अगेन द ब्लड सप्लाई विल नॉट हैपन एंड द पेशेंट कैन डेवलप एमआई। सो अगर स्टेंट फेलियर की वजह से एमआई हुआ तो उसको बोल दिया टाइप 4 एमआई। इसी तरीके से द टाइप 5 एमआई इज, मान लीजिए आपने एक पेशेंट में सीएबीजी ऑपरेशन किया, ओपन हार्ट सर्जरी की, बाईपास लगाया, और ये जो बाईपास आपने लगाया था ये धीरे धीरे इस बाईपास में ही एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। जो बाईपास वाला वेसल था उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया और उसकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल खत्म हो गई और उसकी वजह से एमआई हो गया। सो पोस्ट सीएबीजी पेशेंट को एमआई हो गया, ग्राफ्ट फेलियर हुआ और उसके बाद एमआई हो गया। दैट इज कॉल्ड एज टाइप 5। सो देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। टोटल 5 तरीके के मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गए। सबसे पहला वाला था दैट वाज डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई। टाइप 2 जो था दैट वाज इंक्रीज इन द डिमांड। टाइप 3 में सडन कार्डियक डेथ हुई थी, ऐसा लग रहा था एमआई की वजह से हुई होगी, तो उसको बोल दिया टाइप 3 एमआई। अगर स्टेंट फेलियर की वजह से एमआई होता है, मतलब कि स्टेंट लगाया था फेल हो गया, एमआई हो गया, दैट इज टाइप 4। और ग्राफ्ट लगाया था वो फेल होने के बाद एमआई हुआ, दैट इज टाइप 5 एमआई। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एमआई। नाउ कमिंग टू द complications of MI is a very important topic. Almost whenever they ask you the questions on MI, the first priority is to be given to the complications of MI. The complication of MI में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे को MCQ में उसको पकड़ने के लिए वो होती टाइमलाइन। हम टाइमलाइन से पता लगा सकते हैं कि कौन से डायग्नोसिस की बात चल रही है। सी अगर वो ये बोलते हैं कि विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ MI पेशेंट की सडन कार्डियक डेथ हुई है, विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ एमआई पेशेंट की डेथ हो गई, देन द मोस्ट कॉमन कॉज और द मोस्ट लाइकली ईटियोलॉजी मोस्टली इट इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर अरिथमिया। अगर विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स में डेथ होती है, दैट मोस्टली इट इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर अरिथमिया। द सेकंड कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर बिटवीन 4 to 7 days आफ्टर एमआई। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एडमिटेड अ पेशेंट ऑफ एमआई और सब कुछ सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड इट वॉज डे 5 और आप उसको डिस्चार्ज का प्लान कर रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, सी जहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है वो वाला एरिया जो होता है वो फाइब्रोज्ड हो जाता है, वो वीक हो जाता है, वो नेक्रोज हुआ था, उसमें फाइब्रोसिस हो गया, वो धीरे धीरे खराब हो गया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, बिकॉज ये वाला एरिया जो था इस पेशेंट का रिलेटिवली वीक हो गया था, यहाँ की मायोकार्डियम, सो ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को एओर्टा में पुश करेगा सिस्टोल के टाइम पे, तो जब क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रेशर सब जगह लगेगा। दिस प्रेशर इज गोइंग टू बी एक्सर्टेड एवरीवेयर। और क्योंकि ये वाला एरिया इस पेशेंट का वीक हो गया था, तो हो सकता है यहाँ से फट जाए और यहाँ से ब्लड बाहर निकलने लग जाए। द मोमेंट द ब्लड विल कम आउट, द पेशेंट विल हैव डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, क्योंकि तो इट्स लाइक अ हेमरेज दैट इज हैपनिंग। सो बिटवीन 4 to 7 days all of a sudden there is sudden decrease in the blood pressure। पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ और एकदम से डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर होने लग गया। दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज फ्री वॉल रप्चर। तो फ्री वॉल रप्चर को हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर उन्होंने बोला है कि 4 to 7 days के बाद में एकदम से ब्लड प्रेशर कम हो रहा था तो मतलब कि फ्री वॉल रप्चर हुआ है। नेक्स्ट इज
आफ्टर 4 to 7 days there is one more complication that can happen. See here, मान लीजिए एक पेशेंट था, उसको यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टम में, मतलब कि पेशेंट को सेप्टल एमआई हुआ था. अगर सेप्टल एमआई हुआ था, जो ये सेप्टम था ये रिलेटिवली वीक हो गया, रिलेटिवली वीक हो गया. So now again the same problem can happen when the left ventricle is going to contract, will push the blood in the aorta, the pressure will be exerted here, everywhere the pressure will be exerted. तो हो सकता है कि यहाँ से ये फट जाए, और जैसे ही ये फटेगा the blood will start coming from the left ventricle to right ventricle. So अगर वो बोलते हैं कि after 4 to 7 days of MI, what happened was there is a new murmur, पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ और एक नई मर्मर सुनाई दी जब हमने उसको ऑस्कल्टेट किया, और ये जो नई मर्मर थी, देयर वाज न्यू मर्मर विच वाज सिस्टोलिक, मतलब कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब ये मर्मर आ रही थी, सिस्टोल के टाइम पे आ रही थी, और ये कहाँ पे सुनाई दे रही थी? एट लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर. Then the complication that we are thinking is the septal perforation, means the diagnosis is going to be ventricular septal defect. So MI के बाद में ventricular septal defect भी हो सकता है. कैसे आइडेंटिफाई करना है MCQ के अंदर? अगर उन्होंने बोला है कि 4 to 7 डेज के बाद में पेशेंट को एक नया मर्मर, हमने जब ऑस्कल्टेट किया तो नया मर्मर सुनाई दिया, कहाँ पे था? लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे सिस्टोलिक मर्मर था, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स VSD. There is one more complication that can happen between 4 to 7 days of MI. See, for example, द मिट्रल, ये जो मिट्रल वाल होता है बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको होल्ड करने का जो काम करता है दैट इज पेपिलरी मसल. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से द पेशेंट हैज डेवलप्ड द मायोकार्डियल इन्फेक्शन समवेयर इन दिस एरिया, जहाँ पे पेपिलरी मसल्स अटैच हो रहे थे उस एरिया में पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो पेपिलरी मसल जो है वहाँ से डी अटैच हो जाएंगे, क्योंकि वो एरिया तो नेक्रोज हो गया, और जैसे ही वो वहाँ से सेपरेट हो जाएंगे वो मिट्रल वाल को होल्ड नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ब्लड एओर्टा में आता है, उस टाइम पे मिट्रल वाल बंद होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसका मिट्रल वाल तो कोई होल्ड ही नहीं कर पा रहा था, पेपिलरी मसल खराब हो गए थे. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द लीकेज ऑफ द ब्लड इज गोइंग टू हैपन इन दिस एरिया, मीन्स द पेशेंट हैज डेवलप्ड द मिट्रल रीगर्गिटेशन, पेपिलरी मसल का रप्चर हो गया और उसकी वजह से मिट्रल रीगर्गिटेशन होने लग गया, एंड जनरली दैट हैपेंस ऑन बिटवीन द 4 to 7 डे. सो अगर वो ये बोलते हैं कि 4 to 7 डे के बीच में पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा था, एंड व्हेन वी ऑस्कल्टेटेड देयर वाज अ न्यू मर्मर एट मिट्रल एरिया ड्यूरिंग सिस्टोल, न्यू सिस्टोलिक मर्मर इन द मिट्रल एरिया बिटवीन द 4 to 7 डे, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द मिट्रल रिगर्गिटेशन. तो आप देखिए मैंने दो मर्मर वाले क्वेश्चन यहाँ पे बताए. 4 to 7 डे ऑफ MI के बाद में पेशेंट में अगर मर्मर आ रहा है तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे सुनाई दिया या मिट्रल एरिया में सुनाई दिया. लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे है तो VSD है, मिट्रल एरिया पे सबसे अच्छा सुनाई दे रहा है तो मिट्रल रिगर्गिटेशन है, पेपिलरी मसल्स का रप्चर हो गया. द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट कैन हैपन इज दैट इज गोइंग टू डेवलप. फॉर एग्जाम्पल, आज इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ आफ्टर अराउंड 4 to 6 weeks, means almost 1 to 1.5 month. Sometime what happens is after 1.5 month of MI there is a wrong antibody formation, एक गलत एंटीबॉडी बन जाती है, एंड दिस रॉन्ग एंटीबॉडी इज अगेंस्ट पेरिकार्डियम एंड प्लूरा. देयर इज अ रॉन्ग एंटीबॉडी अगेंस्ट द पेरिकार्डियम एंड प्लूरा. जो हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियम है वो, और जो लंग्स के चारों तरफ जो कवर होता है प्लूरा, उनके लिए गलत एंटीबॉडी बन जाती है. सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दीज एंटीबॉडीज आर गोइंग टू अटैक द पेरिकार्डियम और प्लूरा को अटैक करेंगे. जैसे ही ये गलत एंटीबॉडी पेरिकार्डियम और प्लूरा को अटैक करेंगे, पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी एक्यूट ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस. इन द सेम वे द पेशेंट कैन हैव द प्लूराइटिस ऑल्सो, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज है ये प्लूरा को भी अटैक कर सकती है. सो एक्यूट ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस और प्लूराइटिस विल हैपन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट एज चेस्ट पेन. सो अगर वो ये बोलते हैं कि पेशेंट को MI तो 1-1.5 महीने पहले हुआ था, लेकिन अब पेशेंट को बहुत तेज चेस्ट पेन हो रहा है, और ये जो चेस्ट पेन होता है, ये चेस्ट पेन जो होगा मोर इज गोइंग टू अकर इन सुपाइन पोजिशन कंपेयर टू सिटिंग पोजिशन. वाई ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सी व्हाट हैपन्स इज वी हैव 2 layers ऑफ पेरिकार्डियम अराउंड द हार्ट, द विसल पेरिकार्डियम एंड द पेरेटल पेरिकार्डियम. सो जब ये एंटीबॉडी अटैक करते हैं तो पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं.
और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है उतना ज़्यादा पेन होता है, बिकॉज एक्यूट इन्फ्लामेशन में देयर इज गोइंग टू बी इडेमा, और जैसे ही ये मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हुई, इडेमा हुआ, एक दूसरे से टकराने लगे। तो जब ये पेशेंट लाई डाउन करता है, सुपाइन पोजीशन में होता है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, ज़्यादा पेन होता है। जब ये सिटिंग लीनिंग फॉरवर्ड में चला जाता है, देयर इज लेस फ्रिक्शन, लेस पेन। So this particular thing is called as the autoimmune pericarditis that is happening after myocardial infarction. This is also referred as Dressler syndrome. This is one of the autoimmune condition where for the treatment we don't give steroid. Instead, we are going to give the high dose of aspirin. It is seen that if you give aspirin, the chance of reoccurrence of the Dressler is going to be less. It doesn't occur commonly. It occurs around less than 5% patients of MI. It's not common, less than 5% of MI के patient में होता है. So this is called as the Dressler syndrome. There is one more complication that can happen after myocardial infarction is, let's understand the first concept and then we are going to write down the details about that. For example, here is the left ventricle. We know that the function of left ventricle is to pump the blood in the aorta. Left ventricle का काम है blood को aorta में pump करना. लेकिन हम बोल रहे हैं कि patient को myocardial infarction हो गया इस area में, और बहुत बड़ा myocardial infarction हुआ है, और क्योंकि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो वो वाला जो एरिया था लेफ्ट वेंट्रिकल का वो अब काम ही नहीं कर रहा, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, वो तो नेक्रोज्ड हो गया। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल बेसिकली अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो जो ब्लड है वो यहीं पे इकट्ठा होने लग जाएगा। नाउ ट्रैफिक जाम लग जाएगा, धीरे धीरे लेफ्ट एट्रिया में ब्लड इकट्ठा होगा, पल्मोनरी वेन में इकट्ठा होगा, और अल्टीमेटली लंग्स के अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा। मीन्स पेशेंट को पल्मोनरी इडेमा होने लग जाएगा, कंजेशन होने लग जाएगा। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद में द पेशेंट कैन हैव लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर से पेशेंट को पल्मोनरी इडेमा हो सकता है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन दैट इज गोइंग टू बी देयर। ऐसा सब में नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो कितना बड़ा हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल का डिसफंक्शन कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व हो गया उतना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और उतना ही ज़्यादा पल्मोनरी इडेमा होने के चांस है। सो मान लीजिए एक पेशेंट आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, हमें उसमें देखना है कि उसमें ये हार्ट फेलियर मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, पल्मोनरी इडेमा के फीचर आ रहे या नहीं आ रहे। सो मान लीजिए अगर एक एमआई का पेशेंट है और उसके अंदर कोई भी लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के फीचर नहीं आ रहे, हार्ट फेलियर का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, तो पेशेंट के अंदर कोई पल्मोनरी इडेमा के फीचर नहीं आ रहे, कोई लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के फीचर नहीं आ रहे, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पेशेंट के अंदर पल्मोनरी इडेमा के फीचर आ रहे हैं और पेशेंट के अंदर 50% ऑफ द लंग्स के अंदर कैपिटेशन सुनाई दे रहे हैं, मतलब कि लोअर 50% में सुनाई दे रहे हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा पल्मोनरी इडेमा हुआ है कि पूरे के पूरे लंग्स के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक एपेक्स तक में वी आर एबल टू हियर द क्रेपिटेशंस। फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को पल्मोनरी इडेमा तो हुआ ही हुआ है, साथ में पेशेंट शॉक में भी चला गया। So these are the four possibilities which can happen after myocardial infarction if there is a left ventricle failure or I can say the heart failure. और ये क्लासीफाई करने के लिए ये जो क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द किलिप क्लासिफिकेशन। तो एमआई के बाद में हार्ट फेलियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको क्लासीफाई करने के लिए जो स्टेजिंग हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज किलिप क्लासिफिकेशन। इफ देर इज नो साइन ऑफ हार्ट फेलियर दैट इज किलिप 1। अगर 50% ऑफ लंग्स के अंदर कैपिटेशन आ रहा है दैट इज किलिप 2। 100% लंग्स के अंदर आ रहे हैं तो किलिप 3, और कैपिटेशन के साथ में बीपी भी कम हो गया तो किलिप 4। सो दिस इज द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज देयर विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नाउ वी हैव डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज। वी हैव डिस्कस स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। इसी से सिमिलर एक और टर्म होती है दैट इज प्रिंस मेटल एंजाइना। नाउ व्हाट इज प्रिंस मेटल एंजाइना? प्रिंस मेटल एंजाइना इज ऑल्सो रेफर्ड एज वेसोस्पास्टिक एंजाइना। It is also referred as variant angina. So let's understand ये होता क्या है। See, आपने देखा होगा कि जब भी आप विंटर में होते हैं, विंटर एक्सपो जब से फॉर एग्जांपल मान लीजिए बहुत ठंड पड़ रही है, द टेम्परेचर इज लेट्स से 2 डिग्री सेल्सियस, आपने जैकेट तो पहन रखा है, आपने ग्लव्स नहीं पहन रखे, आपके हाथ में बहुत हैवी ग्रॉसरी बैग्स हैं और आप बाहर से कहीं से अपने घर पे आ रहे थे, तो अब क्योंकि आपने ग्लव्स नहीं पहन रखे थे तो इतना ज़्यादा विंटर एक्सपोजर आपके हाथ पे होगा तो वहाँ की जो ब्लड वेसल है उसके अंदर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, इसलिए हमारे हाथ जो होंगे पेल हो जाते हैं और वो जो ग्रॉसरी बैग के निशान बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर पे आके आप वो बैग रखोगे तो धीरे धीरे आपके हाथ जो है वापस से रिटर्न बैक टू नॉर्मल पिंकिश, लाइट पिंकिश कलर के हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो विंटर एक्सपोजर की वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था वो धीरे धीरे वापस से वेसो डायलेशन होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि हमारी जो एंडोथीलियल सेल्स होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है एक वेसोडाइलेटर होता है।
सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि कोरोनरी आर्टरी में अब मान लीजिए कि एक पेशेंट है, व्हाट इज हैपनिंग टू हिम इज कि कोरोनरी आर्टरी की जो एंडोथेलियल सेल्स है वो खराब है, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए आप और मैं अगर बिना जैकेट पहने बाहर 5 डिग्री 3 डिग्री या लेट से -5 डिग्री भी है और अगर हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए तो विंटर एक्सपोजर होगा चेस्ट पे, कोरोनरी आर्टरी में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, हम इस फेज में पहुंचेंगे, बट विद इन नो टाइम वापस से हमारी कोरोनरी आर्टरी में वेसो डायलेशन हो जाएगा और हमारी ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम को अच्छे से चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी एंडोथेलियल सेल्स नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट करती है। बट जस्ट इमेजिन कि हमारे पास में एक पेशेंट आ रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसके एंडोथेलियल सेल्स डिफेक्टिव है। अगर एंडोथेलियल सेल्स डिफेक्टिव होंगे, देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, डिक्रीज इन द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन ऑन विंटर एक्सपोजर। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बना, सो देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोलॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। कोरोनरी आर्टरी में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा लंबे टाइम के लिए, और जैसे ही अगर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वी कैन से दैट द ब्लड सप्लाई विच इज हैपनिंग इज गोइंग टू बी वेरी लेस, बहुत ही कम हो जाएगी, और उसकी वजह से पेशेंट को इश्चेमिया हो जाएगा। द पेशेंट विल डेवलप इश्चेमिया इन द मायोकार्डियम। सो प्रोलॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन विल लीड टू इश्चेमिया, means the patient will have the chest pain that is referred as angina, and this particular thing is referred as the vasospastic angina or the Prinzmetal angina. So Prinzmetal angina का जो सबसे बड़ा हिंट होगा, पेशेंट जब भी विंटर में जा रहा है, जब भी विंटर एक्सपोजर हो रहा है, विंटर एक्सपोजर के बाद में पेशेंट को चेस्ट पेन होने लग जाता है, that is going towards the Prinzmetal angina or the vasospastic angina. So clinical feature, the patient will have the recurrent chest pain, on winter exposure. It is associated with the Raynaud's phenomena. See, Raynaud's phenomena जो है बेसिकली वही सेम चीज अगर पेरिफेरल वेसल्स में होती है। मान लीजिए किसी की पेरिफेरल वेसल्स का एंडोथेलियल सेल खराब है, तो जब वहां पे विंटर एक्सपोजर होगा तो वहां पे भी वेसोडाइलेशन नहीं होगा, क्योंकि वेसोडाइलेशन कराने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए, वो एंडोथेलियल सेल से आता है। तो अगर किसी के एंडोथेलियल सेल्स पेरिफेरी में खराब हैं तो पेरिफेरी में इश्चेमिया होने लग जाएगा, द फिंगर्स विल टर्न साइनोज्ड, विल हैव द पेल कलर, इनिशियली पेल देन साइनोज्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज द रेनॉल्ड्स फिनोमिना। सो आपको एमसीक्यू में क्या हिंट मिलेगा कि पेशेंट को रिकरेंट चेस्ट पेन होता है, जब भी वो विंटर एक्सपोजर होता है उसको चेस्ट पेन होने लग जाता है, या फिर जब भी वो कोई ऐसी चीज खा लेता है जिससे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, जैसे कि कोकेन। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कोकेन इनटेक। सो दे माइट गिव यू द हिस्ट्री कि पेशेंट ने कोकेन खाया और कोकेन खाने के बाद बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, बिकॉज हो सकता है कि उस पेशेंट की एंडोथेलियल सेल्स खराब है, क्योंकि कोकेन भी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा सकता है। व्हेन यू डू द ईसीजी, इन द ईसीजी यू माइट गेट एसटी एलिवेशंस। तो मान लीजिए एक पेशेंट आया आपके पास में, उसको चेस्ट पेन हो रहा था, आपने ईसीजी किया, आपको एसटी एलिवेशन दिख रहा था, तो आपके दिमाग में तो एक डायग्नोज बनेगा एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसको तो स्टेमी हो सकता है। इसको कैसे कंफर्म करेंगे? दो चीजें, आप एक तो इसका ट्रोपोनिन चेक करो, अगर ये एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा तो ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ होगा, बट यहाँ पे देखिए ये तो वेसोस्पास्टिक एंजाइना है, यहाँ पे तो इंफार्क्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? इश्चेमिया हो रहा है, और इश्चेमिया में तो ट्रोपोनिन नहीं बढ़ता है, सो द ट्रोपोनिन विल रिमेन नॉर्मल। एसटी एलिवेशन तो होगा लेकिन ट्रोपोनिन जो होगा वो नॉर्मल रहेगा। दूसरा, आपको इसमें हिंट मिलेगा कोकेन इंटेक का, रिकरेंट एक्सपोजर, विंटर एक्सपोजर का, इस तरीके का आपको हिंट दिया जाएगा एमसीक्यू में। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? सी द प्रॉब्लम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। प्रॉब्लम इज द वेसोस्पाज्म हुआ है, प्रॉब्लम वेसोस्पाज्म हुआ है, उस वेसोस्पाज्म को हमें हटाना है, मतलब कि वेसो डायलेट करना है। सो आइदर यू कैन गिव नाइट्रेट्स और यू कैन गिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCBs. So nitrates, or we can use the nitroglycerin even also for that. So the nitrates or the CCB will be used for the management of the Prinzmetal angina. So in this entire session of the coronary artery disease, we have discussed mainly 5 diseases: stable angina, unstable angina, NSTEMI, STEMI, and the Prinzmetal angina. Let's understand how they are going to frame the MCQ. So this is an exercise for you. The exercise for you. The first thing that you have to look is, for example, the patient is coming, the chest pain at rest. The moment you see chest pain at rest, the possibility is it's a acute coronary syndrome, means either it's a USA, NSTEMI or STEMI. The next thing that you will look is there is no ST elevation. The moment there is no ST elevation, मतलब कि ST elevated MI तो rule out हो गया, अब दो पॉसिबिलिटी बच गई, या तो ये USA है या ये NSTEMI है. The moment you see that there is
ट्रोपोनिन इज इंक्रीज्ड, ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है मतलब कि ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, क्योंकि इसमें एसटी एलिवेशन नहीं हो रखा था. सो द आंसर इज गोइंग टू बी द नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फाक्शन, नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फाक्शन. इन द सेम वे लेट्स डू द नेक्स्ट वन. द चेस्ट पेन एट एक्सर्शन ओनली, जब भी वो एक्सर्शन करता है तो ही चेस्ट पेन होता है, रेस्ट पे चेस्ट पेन हो ही नहीं रहा है. अगर रेस्ट पे चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, केवल एक्सर्शन पे होता है, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द स्टेबल एंजाइना. चेस्ट पेन एट exertion only. Okay, the next we are seeing is if the patient is having chest pain at rest, ST elevations are there and the troponin is increased, then it is a clear cut ST elevated myocardial infarction. If they are saying that the chest pain at rest, there is no ST elevation, but and the troponin is also normal. Chest pain rest पे हुआ है, मीन्स देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, यूएसए, एनस्टेमी. क्योंकि एसटी एलिवेशन नहीं है तो स्टेमी रूल आउट हो गया, और क्योंकि ट्रोपोनिन भी नहीं बढ़ा हुआ तो एनस्टेमी भी रूल आउट हो गया. सो द आंसर इज यूएसए. Recurrent chest pain on winter exposure. The moment you see the winter exposure word, it is going to be Prinzmetal angina. Chest pain is occurring after 4 weeks of MI. 4 to 6 weeks of MI में जो chest pain होता है, that is because of the Dressler syndrome, autoimmune acute pericarditis. If the patient is having shock on the 5th day post MI, the shock on the 5th day of post MI, it is going towards free wall rupture. So these are the various possibilities when it comes to the acute coronary syndrome. If we see the summary of this entire chapter, it was a little extensive, little lengthy chapter. So let's see the summary. When it comes to the ECG changes, the transmural infarction, if there is a complete 100% block, there is a complete thickness infarction happens in the ECG, we are going to have the ST elevations. Subendocardial ischemia will lead to ST depressions. When it comes to the localization of myocardial infarction, if the ST elevation or any particular change is happening in second, third AVF में change आ रहा है, it is going towards inferior wall MI. If the changes are there in first AVL, V5, V6, it is going towards the involvement of the lateral wall. V1 to V4, it is anterior wall involvement. If the patient is having MI with bradycardia, there is only one MI which can have bradycardia, that is inferior wall MI. इसीलिए inferior wall MI के ट्रीटमेंट में हम बीटा ब्लॉकर नहीं दे रहे थे. इंस्टेड समटाइम वी कैन यूज इवन एट्रोपिन. The marker of reinfarction. The marker of reinfarction is going to be quantitative troponin. If you do some old MCQ, you might get the answer of CPK-MB, but the current one is the quantitative troponin. The best viability test is PET scan. TMT को हम पॉजिटिव कब मानते हैं? TMT is considered positive if the ST depression is more than 2 mm at least in 2 contagious leads, and that at least persist for 80 millisecond. Stable angina, the maximum motility reduction in the stable angina is beta blocker followed by aspirin. मैक्सिमम तो बीटा ब्लॉकर से. कार्डियक फाइब्रोसिस, कार्डियक रीमॉडलिंग को कम करता है बीटा ब्लॉकर. व्हेन इट कम्स टू डोर टू निडल टाइम, अगर आप थ्रोम्बोलाइसिस कर रहे हो, द थ्रोम्बोलाइसिस शुड स्टार्ट विद इन 30 मिनट. अगर प्राइमरी पीसीआई कर रहे हो, दैट शुड स्टार्ट विद इन 90 मिनट. When it comes to the various types of PCI, if you are doing PCI after successful thrombolysis, that is called as check PCI. If you are doing after unsuccessful PCI, that is called as rescue PCI. And USA and STEMI में जो PCI करते हैं उसको हम बोलते हैं delayed PCI, क्योंकि उसके अंदर हम TIMI स्कोर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में करेंगे. When it comes to variant angina, which is also called as the Prinzmetal angina, variant or Prinzmetal, इसके ट्रीटमेंट में the drugs that we are going to give is the nitrates calcium channel blocker. Right, so this is all about the chapter of the ischemic heart disease. Thank you.